سوال تھے جس میں مولانا آپ کو پتہ ہے کہ میرے پردادا حضرت سید امیر اور میرے دوسرے ان کے بھائی وہ تو سارے لوگ جا چکے آپ اور میں موجود ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں یہ جو مفتی محمود صاحب نے 72 نے ہم نے آپ کو الگ کر دیا, ایک سائڈ پہ کر دیا, یہ کس نے کہا طاہر صاحب؟ یہ کدھر لکھا ہے؟ یہ آپ وہ کاروائی اسمبلی کی نکلوا لیں. آپ پاکستان میں میرے سامنے اس وقت پڑی ہوئی ہے. نہیں وہ پوری نہیں ہے اس کی, دیکھیں میں سناؤں. چلو 52 گھنٹے کی ریکارڈنگ انہوں نے 200-300 صفحے چھاپ کے دے دیے. آپ ایک گھنٹہ بات کرتے ہیں تو 100 صفحے بن جاتے ہیں. نہیں کتنے صفحے ہیں انہوں نے جو کچھ چھپایا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں ریکارڈنگ دے دیں, سمجھ گئے؟ نہیں کتنے صفحے پہ چھپی ہے؟ اب میں یہاں سے نکلنے والا ہوں تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے 5 والیومز کی مصدقہ رپورٹ آئی ہے, 5 والیومز کی. آپ کہہ رہے ہیں 300-400 صفحے پہ. 5 والیوم میں ہمیں تو مجھے 5 والیوم کا علم نہیں ہے. جلد دے وچ کوئی 600-700 صفحہ جے. ہاں جی یعنی پر والیوم 600 پلس پیجز کے اوپر ہے. طاہر خان صاحب واٹ آر یو سیئنگ مین؟ اور طاہر خان صاحب جی 72 دی لسٹ تیار کی ہوئی ہے آپ نے, ان میں سے صرف 10 کے نام بتا دیں. صرف 10 کے نام بتا دیں. آپ جانے لگے ہیں, جانے سے پہلے 10 کے نام بتا دیں. 10 کے نام بتا دوں پھر کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں, جلدی. آپ نے لسٹ تیار ابھی آپ نے کہا میں نے کی ہوئی ہے. ابھی آپ نے کہا نا پنڈت لیک رام کی بات, اور صرف 10 کے نام بتا دیں. صرف 10 کے نام بتا دیں. نہیں دیکھیں نہیں کیا ہوتا ہے؟ نہیں جب آپ پکڑے جاتے ہیں نہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ 10 کے نام بتا دیں. اور 10 کے نام بتا دیں, صرف 10 کے نام. 10 کون سے فرقوں کے, 10 فرقوں کے نام بتا دیں جی. آپ کے سنی ہے, وہابی ہے, اہل حدیث ہے, اہل قرآن ہے, شیعوں کے فرقے. بس اتنی رہنے دیں اور بس اتنی رہنے دیں. 6 ہو گئے اور رک جائیں, شیعوں میں اور رک جائیں نا, اور بس یہ 3 ہی رکھ لیں. 8واں اسماعیلی ہو گیا. یار رک بھی تو جائیں. نہیں نووا جو ہے وہ جو بامبے میں رہتے ہیں, بورا اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور 10واں جو ہے وہ جو اس میں رہتے ہیں. اچھا پہلے جو 3 آپ نے بتایا, سنی, اہل حدیث, اہل قرآن. اچھا کسی ایک نے کلیم کیا ہو کہ بھائی یہ فرقے ہیں, بتائیں ان کے لیڈر کون ہیں جنہوں نے کلیم کیا؟ یا کسی ایک نے کلیم کیا ہو جی ہم ایک سنی فرقہ بنانے لگے ہیں, یا اہل قرآن فرقہ بنانے لگے ہیں, یا اہل حدیث فرقہ بنانے لگے ہیں؟ بتائیں بات سنیں. بتائیں سوائے مرزا قادیانی کے. مرزا قادیانی نے آفیشلی فرقہ بنایا کہ میں ایک فرقہ جدیدہ نیا فرقہ بنانے لگا ہوں. اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملتا جس نے کلیم کیا ہو کہ میں ایک فرقہ لانچ کرنے لگا ہوں. دیوبندی, بریلوی, سب بتائیں کس نے کیا؟ بتائیں دلیل دیں. شاہ جی دلیل دیں. زبردست سوال. شاہ جی طاہر بھائی 1 منٹ رکیے گا, میں دیکھیں میری بات سنیں. 1 منٹ رکیے گا طاہر بھائی, 1 منٹ رکیے گا. ان کا سوال بڑا نہیں یہ ایک آپ نے لفظ پکڑا. نہیں بھائی بات کریں آپ. ہاں جی یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 337 کتاب البریہ کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں ایک فرقہ جدیدہ بنانے لگا ہوں, نیا فرقہ جس کا بانی اور پیشوا یہ راکم ہے. یہ لیں, نکل گئے. میں حوالہ دے رہا ہوں, آپ اس طریقے سے حوالہ میرے منہ پر ماریں کہ دیکھیں جی یہ سنی فرقہ فلاں نے بنایا, وہابی فرقہ فلاں نے بنایا, شیعہ فرقہ فلاں نے بنایا, دیوبندی فرقہ فلاں نے بنایا, اس نے اعلان کیا, وہ نکل گئے. اب نکل گئے. نہیں کر کے. چلے تسلیم صاحب آگے. مزے کی بات شاہ جی پتہ کیا تھی؟ مزے کی بات یہ تھی شاہ جی کہ کہنے لگے کہ 74 کی اسمبلی میں 72 نے مل کر الگ کر دیا, اور جب کہا نا 10 بتائیں تو کہتے وہ بامبے دا فرقہ. 74 دی اسمبلی جب بامبے دے فرقے کو فتوی لوائے سن, بامبے دا فرقہ. اب یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 4 ہے صفحہ 40 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے اسلام میں 73 کے قریب فرقے ہو گئے ہیں. اب سنتے جائیے گا. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 226 وہ پلید مذہب یعنی اسلام کو کہہ رہے ہیں, وہ پلید مذہب
जो 73 तक पहुंच गए, पैदा हो गए ग्रोह दर ग्रोह। एक तो इसने इस्लाम को पलीद मजहब कहा, फिर आगे कहा कि 73 फिरके उनके बन चुके हुए हैं। आगे सुने, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 227 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है ये 73 फिरके मुसलमानों के, मैं इसके ऊपर तकरीबन 10 हवाले दे सकता हूं। मिर्जा कादियानी ने कहा कि इस्लाम के 73 फिरके बन गए हुए हैं। तो फिर मिर्जा कादियानी ने जब ये 73वां ये जो फिरका जदीदा बनाया था, तो ये कौन से मजहब का उसने फिरका बनाया? ये तो 74 हो गए टोटल, 73 पहले बन गए थे, 74वां ये बन गया। तो ऐसी कौन सी हदीस है, कोई वो हदीस भी हमें चाहिए होगी। 73 फिरकों वाली हदीस तो है। हाँ जी, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो यहूदी थे वो 71 फिरकों के अंदर तकसीम हो गए थे, उनमें से जो थे 70 जन्मी 1 जनती। ईसाई जो थे वो 72 फिरकों में तकसीम हो गए, उनमें से 1 जनती 71 जन्मी। और मेरी उम्मत 7 तारीख को उम्मत ही, मेरी उम्मत वो 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी और उनमें से 1 जनती जो है 72 जो है जन्मी होंगे। चलो 73 फिरके वाली हदीस तो हमें मिलती है, तो ये 74 फिरकों वाली हदीस कौन सी है बताए? जबरदस्त। नहीं। जी तस्लीम भाई, शाह जी का सवाल आपने सुना। तस्लीम भाई आपको अहलन वसहलन करते हैं। तस्लीम भाई आज फर्स्ट टाइम मेरी ब्रॉड पे आए हैं जी। तस्लीम भाई आपको आपको देख के बड़ी खुशी होती है। आप भी उधर थे तो आपके साथ हम वो कहते हैं जी मैं अमर हक भाई के साथ बात करें। मैंने कहा भी बात क्या करनी है। अमर हक के शामियाने बज रहे हैं टिक टाक की बराडों में, जहाँ वक्फ नजर आएंगे हम उन मैदानों में, वो जो इल्मी तिश्नगी चाहत का इजहार करेंगे, किस दर्दे दिल से पहुंचेंगे हम उन महफिलों में, उन मैखानों में सॉरी वो महफिलें नहीं है, मैखानों में है, यानी कि आपके घर हम पहुंच गए हैं, देख लें जिंदाबाद। किस दर्दे दिल से पहुंचेंगे हम उन मैखानों में। हाँ जी ठीक है जी। मैं अपना अमर हक साहब ना आपकी मोहब्बत। मुझे ये बताइएगा तस्लीम भाई के आपको मुझसे कोई गिला शिकवा तो नहीं? नहीं मुझे कोई गिला नहीं है। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा था आपसे, और मैंने ये कहा था तस्लीम साहब शेर दोबारा सुना दिया, कुछ पल्ले नहीं पिया, दोबारा समझाओ कि क्या जे। अच्छा, अमर हक के शामियाने लग रहे हैं टिक टाक की बराडों में। पहले शामियाने बज रहे थे, तुसी क्या सी सही पहले बज रहे क्या थे? कोई गल नहीं शामियाना आमद हुंदी है ना, फ्रेश आमद हुंदी है ए यूसुफी भाई, फ्रेश आमद हुंदी है। वो बदल जाते ने बाद दफा ना, वो लफज अगे पीछे होंदे ने, क्योंकि बाद लेकिन शामियाने जेहड़े ने तंबू कनाता होंदियां ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं शामियाने लगे ने, लगे तो होए ने, लगे नहीं होए हुन। चलो ठीक है, अगे चलो। तंबू ही लगे ने भाजी, ते वो वजदे ते नहीं ना हुंदे, वो ते लगदे हुंदे ने। तुसी आंदे पे वजदे ने। जी बिल्कुल शामियाने वजदे ने। बिल्कुल सही कह रहे हो। तंबू ਤੁਹਾਡਾ है ते बंबू विच मुसलमानां दा। चलो जी तस्लीम साहब किहड़ी शायरी ढोली बना देखो शायरी जिहड़ी है ना, फिल्म दी शायरी इंज दी हुंदी है। हां जी, ते जा मिर्जा साहब दी भी इंज दी होई सी, मिर्जा जी दी भी इंज दी होई सी। मिर्जा साहब ने कहा कि कुछ शेर और शायरी से कुछ अपना नहीं है मतलब, कोई इस दब से समझे कि मुद्दा यही है। किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। उन्होंने क्या, मिर्जा साहब ने क्या सी कि मेरा शेर और शायरी ना कोई नहीं तलक, कोई इस दब से समझे कि मुद्दा यही है। बिल्कुल ठीक। शेर किदा सी या किने शेर किया सी है? मिर्जा साहब ने। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं दोबारा सुना दियो जरा, दोबारा सुना दियो मेहरबानी। यानी दूसरे लफ्ज़ां ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ तो नहीं मगर तस्लीम भाई। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। माशाल्लाह। अच्छा जी, जहाँ बुक नजर आएंगे ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰ ਅੱਛੇ ਨੇ। इन्होंने आज लफ्ज यूसुफी भाई देखो गल पै गई है मजाक दे विच, और मैं इनू लैके जाना चाह रहा मुफ्ती साहब दा एक संजीदा और एक बड़ा हसास मौजू है। मैं चाह रहा कि मुफ्ती साहब दे टॉपिक ते तहकीक दे उत्ते तकाबली तनकीदी और इस्लाही जायजा लिया जाए जे गुंजाइश है। ये मुमकिन नहीं
جدوں تک تسلیم بھائی جیسے ادبی، تنقیدی، تحقیقی اور تقابلی اور اصلاحی اور انقلابی اور ایک تبلیغی اور ایک تنقیدی اور ایک تکنیکی ساڈے کول تسلیم بھائی جڑے نے وہ نہ ہون. تسلیم بھائی سلیبی بھی ہاں تسلیم بھائی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ شاہ جی نے ایک بڑی جاندار قسم دی اور ایک بڑی ان بائسڈ قسم دی نیوٹرل قسم دی تحقیق پیش کیتی ہے جہدے وچ ڈیٹیلز تے تفصیلات آ رہی ہیں کہ مرزا صاحب دا جڑا بیک گراؤنڈ سی وہ مسلم خاندان نہیں سی. میں مادر چاہنا وا تانوں سن کے جھٹکا لگا ہوئے گا مگر اے تحقیق فی الحال سامنے آ رہی ہے. کیڑا مسلم خاندان نہیں سی کیڑا؟ جی شاہ جی اوور ٹو یو. شاہ جی تسی کس طرح پریزنٹ کرنا چاہو؟ تسلیم صاحب بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جو جماعت احمدیہ کی جو بنیاد رکھی تھی نا یہ چوڑوں سے رکھی تھی اور چوڑے جو تھے بالمیکی اور لال بیگی تھے. کیا یہ اس چیز کا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہی ایک بندہ ہے جو اس نے بات کی تھی آگے سینی صاحب کی براڈ پہ، تو سینی صاحب نے اس کو نگلیکٹ کیا تھا. انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف کسی نے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا ہے، ایسے نہیں ہے، کتابوں سے کہیں سے بھی. سینی صاحب اس کے بڑی واضح طور پر انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایسے ایک شخص آیا تھا وہ اس طرح کی بات کر رہا تھا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا چلے. اچھا یہ ہے کہ میں ابھی نا اسکرین بڑی کر کے آپ کو کچھ دکھاتا ہوں تو پھر یہ ابھی اس چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کسی نے ڈالی تھی نیٹ کے اوپر یا مطلب یہ حقائق اس کے کیا. ایک منٹ ذرا اسکرین آپ نے تو پھر ٹاپک بدل دیا ہے. تو ٹاپک بدلا نہیں ہے، عامر حق صاحب تو کچھ اور ٹاپک نہیں بدلا، ٹاپک نہیں بدلا. یہ دیکھیں خلافت لا منہاج نبوہ یہ کتاب ہے اور یہ بشیر الدین محمود صاحب کی جلد 2 ہے. یہ میری ہے کہ آپ کی ہے؟ یہ کتاب ہی بتا دیں کم از کم کس کی ہے. اچھا جی آگے چلیں بھائی بتائیں تو صحیح نا، پہلے آن تو کرے. میں ایسے حوالہ دے دوں آپ کے، میں اس کو مانتا ہی نہیں. آپ خود ہی پڑھتے ہیں ادھر سے لکھا ہوا ہے. یہ کم از کم آن تو کریں یہ آپ کی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی اوکے آگے چلیں. آپ کی ہے؟ اچھا جی کیا اچھا جی؟ ٹھیک ہے آگے چلیں. بھائی بتائیں آپ کی ہے کہ نہیں، آپ کی مسلمان کتاب ہے کہ نہیں. ظاہر ہے کہ آپ نے نکالی ہے تو ہوگی، آپ کریں آگے. ہوگی کیا؟ اب ہاں نہ کریں گے تو میں آگے بڑھوں گا، ایسے نہیں بڑھ سکتا میں. ایسے کیسے بڑھوں؟ مفتی شاہ جی بات سنیں میری ایک بات. نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں. مفتی شاہ صاحب بات دیکھیں ایک منٹ رک جائیں. میں آپ ہاں یا نہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی میں آگے بڑھتا ہوں، لیکن اصولوں کے مطابق بڑھیں گے نا ہم آگے. ایسے تو نہیں بڑھ سکتے نا. کیا خیال؟ بات سنیں میں جماعت احمدیہ کو ریپریزنٹ نہیں کرتا، نہ ہی میرا کوئی موقف ہے. اچھا لو جی ہوں کر لو پھر. میں جماعت احمدیہ نو جڑا وے او نہیں کردا پیا، آن ہی نہیں کردا پیا. ہن دسو کی بندہ کرے. تسلیم بھائی کی مطلب تو انکار ہی کر بیٹھے جے. بات پتہ کیا ہے عامر بھائی؟ بات جی 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 کہ جماعت احمدیہ جو ہے آپ کو اس طرح کے سوالات آپ نے کرنے ہیں تو آپ جماعت احمدیہ جو ایک ہماری جماعت ہے ان سے آپ سوال کریں، وہ آپ کو جوابات دیں گے. میں تو ان کو اچھا یہ آپ کی ویب سائٹ ہے الاسلام.org ہے اور یہاں پر ہم آ جاتے ہیں کتب سلسلہ کے اندر. یہ کتب سلسلہ کے اندر جو ہی میں نے کلک کیا ہے میں اس موضوع پہ بات سن لینا اور سن بھی تو لینا. کیا ہو گیا آپ نہیں یہ وہی کام آپ نے خان صاحب والا شروع کر. نہیں بھائی رک جائیں ذرا. اب ہم آ جاتے ہیں کتب مرزا بشیر الدین محمود. یہ دیکھیں کتب بشیر الدین محمود کے اوپر میں کلک کرنے لگا ہوں. یہ کلک کی یہ کلک ہو گیا. اب یہ کلک جو ہی کیا ہے تو یہاں پر جناب کتابیں آ گئی ہیں اور یہاں پر ایک کتاب ہمیں تلاش کرنی ہے. یہ دیکھیں خلافت. یہ یار سکرین بڑی کرنا یار، ایکسپینڈ ہو بندہ ایڈ ہویا تے سکرین چھوٹی ہو جاندی ہے. چلو بھائی ایک منٹ رک جائے یار، رک جائے. میں نے اتنی محنت کی ہے بھائی، ایک محنت کی ہے. یہ دیکھیں خلافت لا منہاج نبوہ آپ کی ہے نا. یہ دیکھیں رک جائے ذرا، رک جائیں یار، رک جائیں. یہ دیکھیں میں یہ 3 جلدیں کھل گئی ہیں اور اس کی جلد 2 کے اندر میں جانے لگا ہوں.
जाने लगा हूं मैं, रुकिएगा, इधर उधर ना जाइएगा। आप कह रहे हैं मैं ऑन ही नहीं करता, ये कोई तरीका तो नहीं है। अब मैं ऑनलाइन, भाई सुन ले ऑनलाइन वर्जन के ऊपर जाने लगा। ये भाई मैं ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भाई ऑनलाइन वर्जन के ऊपर गया हूँ, जरा एक मिनट, एक आम बात कर लेता हूँ। तो इसकी जिल्द 2 और सफा नंबर 262 पे जाना है, याद रखिएगा 262। मेरा मैं भूल जाना ही 262 सफा याद रख। 262 ठीक है। 262। मगर मुफ्ती साहब वो कह रहे हैं कि ये खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा का, सलीम भाई। अच्छा जी, 262 सफा ये अभी खुल रही है जिल्द 2 सफा 200। यार इंग्लिश वाला वर्जन तो नहीं आ गया? अच्छा इसके सफा 262। कोई नहीं, इन्हां दी इंग्लिश बड़ी अच्छी जे तस्लीम भाई दी। अच्छा बहुत अच्छी इंग्लिश है जी। अच्छा लो जी, मैनू तो लग रहा है कट्टा कोई नवा खुल गया है कि इन्हों ने वर्जन ही तब्दील कर दिता है। वर्जन नहीं हुंदा लफ्ज, वर्जन हुंदा लफ्ज। हाँ जी, मेरी इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश मेरी कमजोर है। वर्जन दा मतलब जिथे मैं इंग्लिश गलत बोलांगा मेरी करेक्शन करी जाइयो बस। नहीं वर्जन दा मतलब कुवारी हुंदा है, तुसी वर्जन ना कहो, कहो वर्जन। अच्छा वर्जन, ठीक। वर्जन कहोगे तो कहेगा कुआरी। कुआरी यानी मोहम्मदी बेगम। तो बस सफा नहीं हो, ये आसमानी मनकूहा, यानी आसमानी मनकूहा ये तो मुराद नहीं है। अच्छा नहीं देखिए, आप इस तरह ना करें, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं अमरा नहीं रुके कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये देखे ना, अब आप ये किसी को ओपन ही नहीं हो रहा यार, सफा ही नहीं ओपन हो रहा, मैं की करूं? मैं शाह जी से रिक्वेस्ट करता हूं, मुफ्ती साहब नहीं होना है, मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा शाह जी से, कोई ऐसा करिए। आ गया 262 आ गया सी ना? नहीं यार, वो मैं डाउनलोड जरा किया है 262 मैं इंटर किया जे 262 एलो जी 262 सफा आ गया जे। लुधियाना के एक दोस्त नूर मोहम्मद नामी 9 मुस्लिम थे और हजरत मसीह मऊद के साथ बहुत मोहब्बत और इखलास रखते। उन्होंने मुस्लिम मऊद होने का दावा भी किया था। वो कहा करते थे कि बेटा जब बाप के पास जाए तो उसे कुछ ना कुछ नजर जरूर पेश करनी चाहिए। इनका मतलब ये था कि मैं मुस्लिम मऊद होने की वजह से हजरत मसीह मऊद का बेटा हूँ, और चूंकि वो अपने आप को खास बेटा समझते थे, उन्होंने ये फैसला किया था कि कम से कम 1 लाख रुपया तो जरूर पेश करना चाहिए। कहते हैं कि उन्होंने 40-50 हजार रुपया ही जमा किया था कि वो फोत हो गए, और नामालूम रुपया कौन खा गया। उन्होंने बहुत से चूड़े मुसलमान किए और इनसे कहा करते थे कि कुछ रुपया जमा करो, फिर तुम्हें दादा पीर के पास मुलाकात के लिए ले चलूंगा। कुछ अरसा के बाद इन 9 मुसलमानों ने कहा कि पता नहीं आप कब जाएंगे, आप हमें इजाजत दें कि हम कादियान हो आए। इन पर उन्होंने उन 9 मुसलमानों को कादियान आने की इजाजत दी। वो कादियान आए और हजरत मसीह मऊद जब सैर के लिए निकले तो वो बाहर खड़े हुए थे। गालबन वो 9 आदमी थे। इनमें से हर एक ने एक अशरफी पेश की, क्योंकि इनके पीर ने कहा था कि तुम दादा पीर के पास जा रहे हो, मैं तुम्हें इस शर्त पर जाने की इजाजत देता हूँ कि तुम दादा पीर के सामने सोना पेश करो। चनाचे उन्होंने जिक्र किया कि हमारे पीर ने हमें इस शर्त पर आने की इजाजत दी है कि हम में से हर एक आदमी आपकी खिदमत में सोना पेश करे। इसके बाद हजरत मसीह मऊद के साथ वो सैर को चले गए। जब सैर से वापस आए तो चूंकि उनको हुक्का पीने की आदत थी, इसलिए वो हुक्का पीने के लिए मिर्जा इमाम दीन के पास चले। अगला सफर चले गए। वो हुक्का पीने के लिए बैठे ही थे कि मिर्जा इमाम दीन ने कहना शुरू किया, इंसान को काम वो करना चाहिए जिससे उसे कोई फायदा हो। तो जो इतनी दूर से पैदल सफर करके आए हो, क्योंकि उनके पीर का हुक्म था कि तुम चूंकि दादा पीर के पास जा रहे हो तो
पैदल जाना होगा। बताओ तुम्हें यहाँ आने से क्या फायदा हुआ? ईमान इंसान को अकल भी दे देता है, बल्कि अकल को तेज कर देता है। कुछ देर खामोश रहने के बाद उनमें से एक नौ मुस्लिम कहने लगा, हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं और ना ही कोई इल्मी जवाब जानते हैं। असल बात यह है कि आपको भले मानस मुरीद मिले नहीं, इसलिए आप चूड़ों के पीर बन गए। आप कहते हैं कि हमें क्या मिला? आप मिर्जा साहब की मुखालफत करके मिर्जा से चूड़े बन गए। हम मिर्जा साहब को मानकर चूड़ों से मिर्जा हो गए। लोग हमें मरजई मरजई कहते हैं। ये कितना बड़ा फायदा है जो हमें हासिल हुआ। फिर आगे लिखा है कि हासिल हुआ। अब देखो ये कैसी मुशाबहत है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों की बातों में और हजरत मसीह मऊद के रिश्तेदारों की बातों में। अच्छा जी, तस्लीम साहब, मैंने ये क्लेम किया है कि मिर्जा कादियानी का जो सबसे पहला मुरीद था ये चूड़ा था, नूर मोहम्मद जिसका नाम रखा था जी। अब और दीगर चूड़े मिर्जा कादियानी ने फिर जमात के अंदर शामिल किए थे। इसके ऊपर आप क्या फरमाते हैं जी? देखें, बात जो आप कर रहे हैं ना भाई, बात ये है कि जो क्रिश्चियनिटी है, जो मसीह रिलीजन है, तो आप उनके कंट्रीज में भी रहते हैं। आप नहीं, मसीह चूड़ा नहीं, ये चूड़ा एक अलग से कास्ट थी, अलग एक मजहब था जिनका ये ना ही हिंदू थे ना ही मुस्लिम थे, बल्कि इनके कुछ अकायद हिंदुओं जैसे थे, कुछ अकायद इनके मुसलमानों जैसे थे। ये कलमा भी पढ़ते थे, ये कलमा पढ़ते थे जी। अच्छा, तो तस्लीम भाई, अगर आपको तस्लीम भाई अगर आपको लगे कि आपको बात करने के लिए 1 से 1.5 मिनट चाहिए तो आपने मुझे बताना है, मगर अगर आपको लगे कि शाह जी के साथ वॉक द टॉक अच्छे से बात चल रही है तो रिलैक्स, ठीक है, फील फ्री। हाँ जी, देखिए बात ये है कि अब इनके ये बीच में ना बोले अब, क्योंकि अगर इन्होंने बोला तो मैं इनकी बात भी नहीं बोला बीच में। हाँ ठीक है, वो आपका हक बनता है, आपने खामोशी सुना, आपका जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें कहीं भी नहीं इस तरह की जो बात आपने पढ़ी है कि मरज़ई कहा उन्होंने, आपने भी पढ़ा कि ये कितना बड़ा कि जो हमें हासिल हुआ। और आप देखो ये कैसी मुशाबत है रसूल वसल्लम के रिश्तेदारों की बातों में और हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के। ये तस्लीम भाई, यार मिर्जा साहब ही कह लें, पता है क्यों? देखें, ये जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ भाई, मैं उधर से पढ़ रहा हूँ। देखें, वो फिर पढ़ना, मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने। देखें मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने मसीह मऊद पढ़ा है, हालांकि आपको पता है कि मुफ्ती साहब जो हैं वो थोड़ा तुर्श रवैया उनका होता है, मगर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मसीह मऊद पढ़ा है जो लिखा है। आप भी मसीह मऊद पढ़ लें, क्या दिक्कत है? हाँ बस इतनी सी बात, ठीक है ना। अब देखें ना, सीरतुल महदी के अंदर हकीम नूरुद्दीन साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा मिर्जा का कलमा, वो मिर्जा बोलते थे हकीम नूरुद्दीन साहब। क्या वो अल्लाह माफ करे आपके नजदीक, ये मैं बोल रहा हूँ, वो गुस्ताख थे मिर्जा साहब के? नहीं। हाँ, तो इसमें आपने जो पढ़ा है, इसमें आपने अपने से बातें बनाई हैं जी कि वो अगर कोई बंदा क्रिश्चियन से मुसलमान होता है तो उसमें क्या बुरी बात है भाई? अच्छा साहब, आप तो एक इतराज बर तराज पे आप बात कर रहे हैं। अब इसको पूरा सारा मफहूम पढ़ा जाए पूरी किताब का तो फिर बाद में बात समझ आती है कि क्या बात हो रही है, मजमून क्या बयान हो रहा है। अगर आप एक सफ़ा पढ़ेंगे तो उससे पता नहीं चलता कि क्या मौजू है किताब का और किस लिए किताब लिखी गई और उसमें क्या चीज़ बयान की जा रही है। नहीं तो सॉरी हाँ जी साहब, मैं इधर ये जो आप सियाक की बात कर रहे हैं, ये तस्लीम भाई बात उस जगह पर आपका आर्ग्यूमेंट मैं समझ सकता हूँ। देखिए मैं भी बुक रीडिंग का शौक रखता हूँ। सियाक की बात वहां पर आती है जहां वाकया मुकम्मल ना हो या वाकया काट पीट के बयान किया गया हो। मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब ने वाकया तो तफसील से खुल के बयान किया है, उसमें सियाक आप चाहे 2 सफ़े आगे पढ़ें, असल वाकया तो वही रहेगा ना, वो कैसे बदलेगा? तो ये कहना कि भाई सियाक नहीं है वरना बात बदल जाती, तो आप पिन पॉइंट कर दें कि मुफ्ती साहब ने ये 2 लाइनें पढ़ लेते ना तो ये कॉन्टेक्स्ट ठीक हो जाना था। क्योंकि आगे मैं जब देख रहा हूँ ना तो उसमें लिखा है कि अगर मैं पढ़ूं, लंगर का भी जिक्र है, उसके अगले सफ़े पे सफ़ा नंबर मैं देखें 264 पे अगर आप पढ़ें तो उसमें मनारतुल मसीह का भी जिक्र है, मस्जिद मुबारक का भी जिक्र है, मस्जिद अक्सा की वुसअत इस कदर इजाज़त थी, ना महलों में ये रौनक थी, ना कॉलेज था, ना स्कूल थे। जिस सफ़ा 264 से पढ़ रहा हूँ
उन दिनों लोग अपने इखलास से खुद ही काबिल ज़ियारत जगह बना लेते थे। ये हजरत मसीह मऊद के वालिद साहब का बाग है। बात सुन ले जी, क्या खलते मबस कर रहे हैं। ये देखें, ये वाकया यहाँ लुधियाना से शुरू हुआ है और जाके खत्म हो रहा है यहाँ बातों में तक। यहाँ से एक नया शुरू हो रहा है, मिर्जा अली शेर का वाकया शुरू हो रहा है। हाँ जी। ये वाकया अलग वाकया है, ऊपर वाला एक वाकया अलग है। क्या चले कर रहे ठीक हैं है, आप? जहाँ सफा पे आप 264 पे वाकया- चले गए हैं। सफा आप जहाँ पे 264 कहते में हैं जो जिक्र है मिर्जा अली शेर का जिक्र है जी। अच्छा, आप कहते हैं 264 ना पढ़ूं मैं सफा? भाई पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। बात ये है मोहतरम कि ये वाकया है ही एक वाकया है, वो मैंने आपको सुना दिया है पूरा नहीं, आपने वाकया। सुनाया ना, तो आपने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, वो गलत है। मैंने कौन सा तरोड़ मरोड़ के किया है बताएं? आपने अपने से ही मफहूम निकाल लिया कौन कि सा मफहूम निकाला है बताएं? आपने क्या मफहूम निकाला, पहले बता दे, मैं फिर अपना मफहूम बता देता हूँ पढ़ के भाई आपको। आप क्या समझे? चले मैं आप पे छोड़ता हूँ, छोड़ें, मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या समझे थे। इसमें जो आप समझे हैं ना, वो बिल्कुल गलत बयान कर रहे हैं आप। भाई मैं कुछ भी नहीं समझा, आप समझा दें। मैं कुछ नहीं समझा। आपने क्या कहना क्या चाहते हैं, बताएं ना लोगों मैं को। कुछ बताएं भी ना। नहीं कहना चाह रहा, आप बता दें। वाकया आपको सुना दीजिए, कुछ बताएं नहीं आप कहना क्या है, समझे, तो बात खत्म हो गई। क्या समझे हैं। नहीं, मुझे तो कोई ऐसी इसमें गलत बात नजर नहीं आ रही जो आप हाँ, गलत बात आपको कोई नहीं नजर आ रही। यहाँ पे हाँ जी। ये लिखा हुआ है कि नूर मोहम्मद नाम का चूड़ा था जो मिर्जा कादियानी का पहला मुरीद बना था और उसने फिर दीगर चूड़ों को मिर्जा कादियानी का मुरीद किया था। तो इसमें क्या बुरी बात है जी? बस कोई बुरी, बस यही तो कह रहा हूँ। ऐसे ही है ना ये बात जो लिखी है, ऐसे ही है ना। बस ये तस्दीक करवाना चाह रहे थे हम। नहीं, आपको क्या एतराज है कि मुसलमान नहीं होना चाहिए बंदे को? कोई बात ही नहीं है। बस भाई आप इस चीज को, भाई एक मिनट सुन भी तो लेना यार तस्लीम साहब। भाई आप इस चीज को तस्लीम करते हैं ना कि जमात अहमदिया का पहला फर्द चूड़ा था और इब्तदा में वो नौ चूड़े मिर्जे कादियानी के मुरीद बने थे। इस चीज को तो तस्लीम करते हैं ना। और पहला मुस्लिम मऊद चूड़ा था यानी नूर मोहम्मद जी। भाई मेरे जो उस कल्चर में क्रिश्चियन को जो लफ्ज है, ओ भाई क्रिश्चियन नहीं है। ओ यार ये क्रिश्चियन नहीं है, क्यों धोखा दे रहे हैं। ये देखें, ये किताब लिखी गई है हलाल खोर, ठीक है, हलाल खोर किताब लिखी गई है। इसमें ये सारा इनका दीन मजहब बताया है। ये मैंने सफा 37 ओपन किया है। वो देखे, वो कलमा भी पढ़ा करते थे चूड़े। वो देखे, ये लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सखी सरवर गवाह है कि हमारे बुजुर्गों का एतकाद यही कलमा है। ये चूड़े कलमा, ये चूड़े और हैं जिनको आप चूड़ा कह रहे हैं ना, ये वो चूड़ा नहीं है। अब ये देखें, ये उनका जो इबादत थी ना, इबादत के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल होता था दादा पीर, दादा पीर का दीदार, दादा पीर का दीदार, दादा पीर का दीदार। ये देखें, ये सफा 36 के ऊपर। और यही दादा पीर आपको यहाँ पर मिलता है कि हम दादा पीर की जियारत को हाईलाइट जाना करो। चाहते हैं। मुफ्ती साहब वो दादा पीर वाला वर्ड जो है हाईलाइट कर दें, क्योंकि दूर से नजर नहीं आ रहा। ये हाँ बिल्कुल। ये कौन सी किताब से आपने निकाला दादा पीर? यार मैं यार ये खिलाफत आमिर, अला मिन हाजुन नबुवा तस्लीम भाई सफा भी बताया ना लोगों को। यार बता 262 रहे यार, चीज खोल के बताइए यार। दूसरी सफा जिल्द बता दें ताकि पता मुझे चल याद जाए हो ना गया, लोगों को। वॉल्यूम 2 पेज 262 पढ़ा है। अच्छा, 262 पे लिखा है, क्या लिखा जी आप बताएं। वो पूरा एक रस्म वो लिखी हुई लिखा है। हुआ है कि मिर्जे कादियानी का पहला जो मुरीद था, जमात अहमदिया जब शुरू की थी तो एक चूड़ा मिर्जे कादियानी के हाथ के ऊपर उसने बैत की थी। गुलाम बाल्मीक था, मिर्जे ने उसका नाम नूर मोहम्मद रखा था। फिर उस नूर मोहम्मद को मिर्जे कादियानी ने अपना बेटा बना लिया। उस चूड़े को, उस चूड़े ने अपने आप को मुस्लिम मऊद कहना शुरू कर दिया था। उस चूड़े ने दीगर चूड़ों को अपना मुरीद बना लिया था। फिर उन सब मुरीदों को मिर्जे कादियानी की गोद के अंदर डाल दिया था। ये लिखा हुआ है। देखें सर, आप जो क्रिटिकल एनालिसिस जो आपने ना बड़े लफ्ज बोले हैं अमर हक भाई, मेरा गल समझ गया मैं की कहना चाह रहे हैं। नहीं मैं समझ गया। मैं तस्लीम भाई असल में खुद डील कर जरा, डील कर। जी तस्लीम भाई, असल में शाह जी ने जो ड्रग्स निकाला है ना, जो चीज़ निकल कर सामने है वो ये आई है कि एक वाकया है जो बशीरुद्दीन महमूद साहब जो कि दूसरे खलीफा हैं जमात के सिलसिला के, वो अपनी खिलाफत अला मिन हाजिर नबुवा की दूसरे वॉल्यूम पे 262 पे ये एक वाकया बयान कर रहे हैं कि ये वो डिटेल है तारीखी तौर पर
کہ کچھ چوڑے خاندان یا قبیلے کے لوگ تھے جو مرزا صاحب پر بیعت کر رہے تھے, مسلم موعود بنا ان میں سے ایک, اور وہ پھر کئی چوڑوں کو لے کے آیا جنہوں نے مرزا صاحب, دیکھیں یہاں تک آپ کچھ تسلیم صاحب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چوڑے تھے پھر مرزا صاحب پر ایمان لے کے آئے اور انہیں بیعت کر دی, ٹھیک ہے نا, اوائل میں. اب جو وہاں دادا پیر کا جو پوری روایت کا ذکر مل رہا ہے نا, وہ پھر شاہ صاحب نے دکھایا ہے, ایک حلال خور کتاب ہے, اس کا کانٹیکس دکھا رہے ہیں کہ وہاں پر جو چوڑوں کا پیر ہوا کرتا تھا نا, اس کو دادا پیر کہتے تھے. یہ ایک سمبولک سملیرٹی نظر آ رہی ہے ٹریس کرنے میں کہ یہ ایک ہی خاندان کے دو مختلف گروہ ہیں, بیک گراؤنڈ ایک ہے. اسی لیے میں نے تسلیم بھائی آپ کو کہا تھا کہ میں خود اس وقت بڑا شاکنگ میرے لیے نیوز ہے کہ میں تو ابھی تک یہ چیز ڈیل کر رہا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ دعویٰ سے پہلے جو ہیں ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزار رہے تھے, مگر یہ شاہ جی نے جو انفارمیشن رکھی ہے اس میں تو سمجھ آ رہا ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ دعوے سے پہلے مسلم بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتے تھے. بڑا خطرناک سا یہ ایک انفارمیشن ہے. نہیں, اگر کوئی اسلام میں آتا ہے کرسچینٹی سے یا کسی مذہب سے بھی, یا کچھ ہندوؤں نے بھی اسلام قبول کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے, سکھوں نے کیا ہے, احمدی ہوئے ہیں, بے شک سکھ بھی ہوئے ہیں احمدی بھائی, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, میں نہیں ہو سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. ہاں, تو میں یہ آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ تنقید برائے تنقید اور اس میں بھائی تنقید نہیں کر رہے ہم, حد ہو گئی. تسلیم صاحب آپ کیوں نیگیوٹی وہ سوچ رہے ہیں, آپ منفی پہلو کیوں سوچ رہے ہیں؟ ہم کوئی تنقید نہیں کر رہے, واللہ کچھ نہیں کر رہے, ہم صرف آپ سے ایک بات کی تحقیق چاہ رہے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کی ابتدا چوڑوں سے ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, بس یہ ہے بات. آپ پتہ نہیں بات کہاں کی کہاں لے گئے ہیں, بس یہ ہمیں بتا دیں آپ کہ بھائی آپ بھی مانتے ہیں کہ نہیں, کتابیں آپ کی آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں. دیکھیں تسلیم بھائی, میں آپ کے لیے اور مزید آسان کرتا ہوں جو شاہ جی جاننا چاہ رہے ہیں, جس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ ایک مناسب شخص ہیں اور ایک ادبی ہیں, تو آپ اس حوالے سے دیکھیں. مرزا صاحب کہتے ہیں نہ جانے کیوں, یہ انہوں نے لکھا ہے کتاب البریہ وغیرہ میں بھی, مرزا صاحب نے کہا ہے نہ جانے کیوں ہمارے خاندان کا ذکر مغل برلاس میں لکھنا شروع ہو گئے. مغل برلاس میں وہ کہتے ہیں حالانکہ ہم مغل برلاس فیملی سے ہیں ہی نہیں ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں زمیمہ تحفہ گولڑویہ کے اندر کہ یہ میرے پہ الہامن چیز کھولی گئی ہے کہ ہم اصل میں فارسی ہوں. یعنی مرزا صاحب کے خاندان کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا تسلیم بھائی, وہ سٹک نہیں رہ رہا اپنے اس سارے معاملے کے ساتھ. اب نئی تحقیق آ گئی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے تسلیم بھائی. جو مجھے اس میں پازیٹیو پہلو چیز آ رہی ہے کہ اس میں لکھا ہے بڑا کلیئر, 262 صفحے سے میں پڑھوں گا, آپ ذرا غور سے سنیں. اس میں لکھا ہے کہ 9 مسلموں کو مسلمان کیا, یعنی کہ احمدی بنایا, ان کو اسلام میں اسلام کی طرف بلایا انہوں نے. تو اس میں 9 مسلموں جو نان مسلم تھے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو اسلام قبول کرایا. اس میں بری بات کیا ہے؟ فرق سمجھیں. دیکھیں یہ سوال نہیں اٹھ رہا کہ کیا انہوں نے اسلام قبول کیا یا مرزا صاحب نے اسلام قبول کیا یا کیا. سوال اس وقت یہ ہے کہ جو یہ ہمارے سامنے حقیقت آ رہی تھی کہ مرزا صاحب کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ مسلم بیک گراؤنڈ تھا. شاہ صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں حوالوں کی بنیاد پر کہ وہ کبھی بھی مسلم بیک گراؤنڈ رہا ہی نہیں ہے. یہ باقاعدہ تسلیم بھائی میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو دکھ لگے, شاہ جی کے حوالوں کے مطابق یہ چیز نکل کر سامنے آ رہی ہے, واللہ عالم ابھی تحقیق انڈر پروسیس ہے, انڈر انویسٹیگیشن ہے. شاہ جی بھی کہہ رہے ہیں میں پیش کرتا ہوں پبلک کے سامنے, ہے کوئی ریجیکٹ کر جائے, کوئی ریفیوٹ کر جائے. وہ یہ چیز نکل کر تسلیم بھائی سامنے آ رہی ہے کہ مرزا صاحب ایک امپوسٹر تھے. آئی ایم ریئلی سوری, ہی واز این امپوسٹر. ٹھیک ہے نا, السلام علیکم. ہاں تو وہ کیا کر رہے, وعلیکم السلام پیارے بھائی, ایک منٹ رکیے گا. لیڈر آف سویپر, لیڈر, ہی واز ایکچولی اے لیڈر آف سویپر. ٹھیک ہے, اینڈ دین ہی واز pretending to be someone else. تسلیم بھائی I hope you 264. اب مجھے 1 منٹ دینے بولنے کا, ٹھیک ہے پلیز, مجھے 1 منٹ لگا دیں کیونکہ آپ بولتے ہیں تو پھر مجھے بھی میں آپ کو 1 منٹ دے دیتا ہوں. 262 صفحہ سے کچھ پڑھتا ہوں. کچھ عرصہ کے بعد ان 9 مسلمانوں نے کہا کہ پتہ نہیں کہ اب کب جائیں, کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم قادیان ہو. ہمیں ان پر انہوں نے 9 مسلمانوں کو قادیان آنے کی اجازت دے دی. وہ قادیان آئے اور حضرت مسیح مرزا صاحب جب سیر کے لیے نکلے تو وہ باہر کھڑے ہوئے تھے. غالباً وہ 9 آدمی تھے, ان میں سے ہر ایک نے ایک اشرفی پیش کی کیونکہ ان کے پیر نے کہا تھا کہ تم دادا پیر کے پاس جا رہے ہو, تمہیں ان سے اس شرط پر جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ تم سامنے سونا پیش کرو. چنانچہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے پیر نے ہمیں اس شرط پر لانے کی اجازت دی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی آپ کی خدمت میں سونا پیش کرے. اس کے بعد حضرت
मिर्ज़ा साहब के साथ वो सैर को चले, जब सैर से वापस आए तो चूंकि उनको हुक्का पीने की आदत थी। देखें आप अगला आगे सफ़े पे जाएंगे ना आप, तो वहाँ के तो बागों का जिक्र है उनका। तो आप जो जिस तरह आप बात पेश कर रहे हैं, मैं आपके साथ एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि उनके बाग थे। ऐसा नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब एक खाते पीते और एक वेल ऑफ फैमिली थी जो मुगलों के से नस्ल में से थे, और मैंने वो किताब पढ़ी है। तो उनका ख़ानदान एक ऐसा नहीं था जो आप जिस तरह आप पेश कर रहे हैं, वो एक तनकीदी है। आप क्रिटिकल एनालिसिस करके तो एक चीज़ को गलत रंग में पेश कर रहे हैं। लिहाजा मैं जाने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ ना अमर अक भाई, क्योंकि फ़ायदा नहीं है जिसमें, देखें गुफ्तगू वो होनी चाहिए जिसमें एक दूसरे की इज्जत का भी ख्याल हो। कुछ अहमदी सुनने वाले हैं, वो भी आपसे एक अच्छी बात लेके जाए। शुक्रिया। देखिए मेरी अगर कोई बात बुरी लगी है, नहीं, जाना हल नहीं है तस्लीम साहब, जाना हल है नहीं, जाना हल नहीं है, ये याद रखिएगा। आप अगर चले गए तो आप इस चीज पर मोहर सबत कर रहे हैं कि वाकई जो हम क्लेम कर रहे हैं वो ही है। आप जी चुरा के जान छुड़ा के भाग रहे हैं, जाना हल नहीं है। आमिर भाई इनको जाने ना दीजिएगा, नहीं तो आज ना हमेशा के लिए मोहर लग जानी है कि जो आजज बात कर रहा है ना, ये वो ही बात जी। जो आजज देखें, जो आजज मुफ्ती मुबश्शिर साहब बात कर रहे हैं आजज, और आमर हक भाई मैंने उनका जवाब दे दिया है। वहां पे देखें कि लंगर और बावर्ची खाने और उसमें मनारतुल मसीह का जिक्र अगले समय। अच्छा एक बात आमिर भाई, इन्होंने जो की है ना, मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ और इनके साथ हूँ कि मुगल बरलास वाली जो बात की ना, वो इनकी बात से कुछ मैं एग्री करता हूँ, इन्होंने सही बात की है। लेकिन जो उनके बारे में ये मशहूर किया गया ना फारसी नस्ल, ये बकवास है, झूठ है, किसी ने बहुतान दराजी की है। लेकिन ये जो बात है ये ठीक नहीं, इन्होंने पढ़ी बात ये है कि मिर्जा साहब के मुगल होने के अंदर कोई शक और शुबा नहीं है। मैंने पहले मतलब ये कि मुगल एक कास्ट थी, और कास्ट जो है ना वो मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर थी, और इसको बेग भी कहते थे। और इनका जो बड़ा था ना दादों के अंदर, परदादों के अंदर एक शख्स था लाल, और लाल बेग साहब जो थे वो बाल्मीक थे। यानी बाल्मीक साहब जो थे जो चूड़ों के लीडर थे, चूड़ों के समझ ले के बड़े उतार थे। तो ये लाल बेग साहब जो मिर्जा कास्ट के एक दादे पर दादे थे, उन्होंने चूड़ा फैमिली को कबूल किया और चूड़े बन गए थे। और वहां से ये चलते चलते ये कादियान का पुराना नाम लाल बेगियां था, और ये चूड़ों का एक इलाका बन गया। अच्छा, ये बार बार झूठ बोल रहे हैं, आप मौका नहीं दे रहे किसी को। मुबश्शिर साहब आपने पहले तो ये जो मजमून पढ़ा ये आपने गलत पढ़ा। बात हो रही है ना तस्लीम मैं आपको हवाले से, मैं आपके साथ हवाले से बात करता हूँ। एक मिनट में मैनेज करता हूँ, हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आप बात कर लीजिएगा। रुक जाएं एक मिनट। मैं मुफ्ती साहब मैं मैनेज करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैनेज करने की। अंडर भाई आप आए हैं, अंडरवर्ल्ड भाई आपको वेलकम सबसे पहले कहते हैं। हवाला पढ़ना है, रुकिए एक मिनट रुकिएगा। अंडरवेयर भाई आप बिल्कुल खामोश रहे, तस्लीम साहब कर रहे हैं। अंडरवेयर भाई यूसुफी भाई साबित करता हूँ मुबश्शिर का मैंने ओपे आजे ए ਹੁੰਦਾ जे ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। 2 मिनट ਦੀ गेल जे, ये एफिशिएंसी मारने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले ध्यान में रखें, जब मैं कह रहा हूं मैं मॉडरेट करूंगा, अंडरवर्ल्ड भाई मैं मॉडरेट करूंगा, अगर आपको आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस है इस चीज पर कि आप रिफ्यूट कर सकते हैं। मैंने नहीं उतारा, आपके लोगों ने उतारा मुझे। यार मेरी बात सुन रहे हैं मुबश्शिर साहब से, मैं सवाल पूछता हूँ। मेरी बात सुने ना, इसे कराए मेरी बात कराए, मैं हवाले के साथ वीडियो आप बात करना चाह रहे हैं? हाँ मैं करता हूँ बात। बस रुकें। तस्लीम साहब आप इजाजत देते हैं कि आप तो बात नहीं कर रहे, मैं मुफ्ती साहब की बात उनसे करवा दूं, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया अमर हक भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मुफ्ती साहब का भी आपसे ये अंडर कवर साहब लेते हैं, थैंक यू जी। तस्लीम भाई क्योंकि ये तरीका कार है कि मैं आपका हक किसी को दे दूं, आपका वक्त किसी को दे दूं, ये आपकी जांच के बगैर मुमकिन नहीं होगा, ठीक है? तो हम ऐसे करते हैं। अब भाई आप हक पर हैं तो आप हक की बात करेंगे इंशाल्लाह। मेरे 2 मिनट रखिएगा, 2 या 3 मिनट नहीं 2 मिनट नहीं, मैं सवाल पूछता हूँ ना। अंडरवर्ल्ड भाई आप मुबश्शिर साहब आपने झूठ बोला, मेरी बात सुनो। अंडरवर्ल्ड भाई नहीं मैं लंबी कोई इधर को मुनाजरा नहीं करने आया, सीधी बात। चल फिर नस जा, चल नस जा उल्लू के पट्ठे, तेनू इज्जत रास नहीं आती भाई, बंदे दा पुत्र बन। तस्लीम साहब की हम इज्जत करते हैं, तू मेरे मिर्जे ते चढ़न लग पे हैं। वेल डन
ਜੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਤਾ ਹੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਤੈਨੂੰ ਬਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰੂ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ बंदे का पुत्र बन वापस आए आपको जब क्या देखो मेरी बात सुनो तुसी दुनिया में 200 मुल्कों में फैल गए हैं तमीज नहीं है तुम लोगों को तुम में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो आप लोग कि अपनी बारी में बात कर लो कह रहा हूं कि 2-2 मिनट 3 आप जो बात करोगे सलीके तरीके से करना तू मामा चौधरी लगे थे ये पीछे हट जो मैं गल करांगा मैं तो छनकना लानू ब्रॉड लाई है वो बड़ा चौधरी है तो बात सुने अंडरवर्ल्ड साहब नहीं तुम कुत्ते की जुबान तुम नहीं 1 मिनट तुमने कुत्ते की तरह जुबान बाहर निकाल ली है वो नीचे उतार दी है ये तुम आलम हो ये आलम है ये तुम्हारी तुमने सीखा है कुरान से इतनी तुम्हारी लानती जुबान है जो तुमने बातें की हैं कर लो मुझे ब्लॉक जो करना है बात संसार में तुम्हारे से अपनी बारी में बात करवा दूं तुम खुबासत तुमने शुरू की है बकवास तुमने शुरू की है मैंने तुमसे कोई गलत बात की है अपनी बारी में जितनी मर्जी गालियां देना भाई नहीं, हमारे कुत्ते- सीने बड़े कुत्ते चौड़े की हैं जुबान है, गालियां सुनने कुत्ते की के तरह लिए। जुबान निकाल के तो लेकिन तुमने 2-2 मिनट रख बाहर दो, बात दो-दो की है अपने अपने बकल में जो मर्जी कर अपने काबरीन के बारे में इस तरह बात करवाते हो मुफ्ती साहब ने अपने बोला बाप दे से हो। इस तरह बात करते हो ओदी मैं गिची नपी ओनू चीखा मार दे हो ना नहीं कुरान और हदीस ने तुम्हें ये सिखाया कि लोगों के काबरीन पे इस तरह बातें करनी है तुम इतने लानती इंसान हो और तो मिर्जे ने जो गालियां दी यार मैं नीचे उतार दूंगा दानियाल यार ये कोई तरीकाकार नहीं है मैं नीचे उतार दूंगा मेरा भाई मैं ओदी संगी कुट नस गया ना बस वो मैं ओदी संगी कुटिए वो चीका ना मारे यार उसको मुझे बुरा भला बोलने दो उसका पखाना रुक जाएगा अगर उसने मुझे ना कहा आप सारे कूद पड़ते हो यार मुझे फिर नीचे उतारना पड़ जाएगा सबको सीधी सी बात है ये देख लो ये कोई तरीकाकार नहीं है यार ये मजबूरी है मेरी यार कोई कमाल हो गया यार इस तरह ना करें मैं उसकी मुफ्ती साहब के साथ बात करवाने लगा हूं हम उसकी बात करवाएंगे अंडरवर्ल्ड साहब थल्ले आ जाओ ठीक है आए अगर आप बात करना चाहते हैं मुफ्ती साहब के पास दलाइल हैं आपको लगता है आपके पास कोई जनाब गिद्दड़ सिंह ही आ गई है जिससे आप मुफ्ती साहब के एतराज़ का जवाब दे सकते हैं आ जाओ मुझे जो मर्जी कह लो हमारे गेस्ट को कुछ नहीं कहना और ओवरलैप नहीं करना बस सिंपल देखो फेयर इनफ ना मुफ्ती साहब आपकी बारी में बात करेंगे ना आप मुफ्ती साहब की बारी में बात करेंगे ये कोई तरीका नहीं है कि मुफ्ती साहब आपकी बारी में खामोश रहें वो इंतजार करें आप जनाब आके हमारे गिरेबान को हाथ डालना शुरू कर दो ऊपर से कह रहे हैं जी ये अखलाक है तो तू की कर रहे हैं तू मेरा फीडर क्यों चुंग रहे हैं मेरी इजाजत तो बगैर आप मेरी ब्रॉड पे आए हो बंदे के पुत्र की तरह अपनी बारी का इंतजार कर हम जब किसी की ब्रॉड पे जाते हैं जब तक हमें इजाजत नहीं दी जाती मैं तो अपना माइक भी नहीं खोलता मैं अगर किसी की ब्रॉड पे जाता हूं जब तक वो मुझे मुखातिब करके नहीं कहते कि भाई आप ब्रॉड अपना माइक खोले मैं नहीं खोलता ठीक है स्टेज पे आए ना अंडरवर्ल्ड साहब जो भी बोलना है आपने मिर्जा साहब के अखलाक पेश करना जो भी करना स्टेज पे आके करें हिम्मत है आप में तो अगर तुम में तप्पड़ होता ना कि मुफ्ती मुबशर के उठाए हुए एतराजात का जवाब देते तो तुम में कभी ये बेचैनी ना होती तुम में हिम्मत होती कि तुम सब्र के साथ अपनी बारी का इंतजार करते जो तू बड़ा फड़फड़ांदा आया ना इससे पता चल रहा है कि मुफ्ती मुबशर ने जो किला ठोका है ना वो किला बहुत अंदर तक गया है इसलिए तुम फड़फड़ाते आए हो वरना तू बंदे दे पुत्रा तरह तू डेकोरम दे नाल इज्जत नाल बात करता रोंदे जमाते अहमदियत दी तरक्की नूं शक्लां वेखो अपनी हरकतां अपने करतूत वेखो बेगैरतो बेशर्मो ना चार लोगों च बहन दा सलीका पता ना गुफ्तगू दा अंदाज ना तरीका ना दलील ना इस्तदलाल ना कुरान ना हदीस ना सीरत ना तैयब ना हदीस ना कोई मिर्जा साहब दी कोई तुहाडे अंदर कोई गल पाई जांदी ना किताब दा मुताला आ जाओ रिक्वेस्ट भेजो 1-to-1 करते हैं जितना टाइम मुफ्ती साहब को मिलेगा उतना टाइम तुम्हें मिलेगा बारी होगी बात बात के ऊपर मुझे जो मर्जी कहना कहो जो मर्जी आई डैम केयर ठीक है मगर अपनी बारी में ना रखा है कुदरतुल औलिया शेखुल मशाइख हजरत पीर मौलाना डॉक्टर मोहम्मद आमर ना होकर बकवास इतनी जुबान इतनी चलाते हो माफी मांग मेरे से तू दूसरी बराबर पे आएगी मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा ना तू इधर माफी मांग मेरे से पहले जो तुमने बकवास किया फीडर देना तो अपनी माँ को दे अपनी बहन को दे अपनी बेटी को जाके दे अपने रिश्तेदारों को दे खबीस इंसान है तुम्हें बात कर ये आलम है ये इस तरह के लोग हैं जिन्होंने तरबियत कर दी है माशरे में
आपकी सारी बातों का एक ही जवाब है, हाँ। बात ये अपनी करनी माँ आपने। अपनी माँ से कर जाके या अपनी किसी बच्ची के मैं साथ ये जाके कह रहा कर। हूँ, मुझे ये मेरे हालत है। कद्दू को, ये मेरे एक कद्दू को तो मुसलमान परवाह आलम नहीं है जिनके बारे में कहा गया कि आसमान मेरे के नीचे कद्दू को- बदतरीन मखलूक होगी। चलो बोल ले, रांझा राधी कर ले, मैनू पता है मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀ और ਕੁੜੀ शेख रहमत उन्होंने दिल्ली की मस्जिद में देखा ना, उन्होंने देखा ना दिल्ली की मस्जिद में उन्होंने इस्लाम फेरा। उनके मरीज ने पूछा कि ये बड़े शाह साहब ये आप अपने चेहरे को क्यों छिपाते हो? कहते हैं मैं जब भी इस्लाम फेरता हूं दोनों तरफ सूर और बंदर नजर आते हैं। तो वो आप जैसे लोग थे उधर बंदर बैठे हुए। मांग भाई गुफ्तगू माफी मौजू पे मांग। कर लें, नहीं इसकी तू तैयारी माफी करके पहले आए थे। मेरे से मांग। मैंने तुझे बात गलत की थी तुम्हारे साथ मैंने आके? बीच में क्यों टोकते हो? पहले अच्छा चलो नहीं, ऐसे टोकते करते क्यों हैं, है? चलो मैं बताता हूँ, तुम ऐसा माफी करते हैं। मांगेगा देखो, फिर आगे बात होगी। ओके डन कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। नहीं नहीं डन क्या? ओह और अपने देखो, बाप के ये साथ तुम फिर इस वही तरह हरकत बात कर रहे करते हो। हैं? बारी बारी बात करते हैं ना, नहीं फिर बात अपने बाप के साथ इस तरह बात करता है। फिर वही बात हो गई। मैं अपनी बारी में बात करता हूँ, आप ओ तो माफी मांगने के लिए भी बोलना नहीं पड़ेगा ना। तुम माफी जो किला ठोकना है वो तुम्हारे अंदर मैं ठोकूंगा। चलो वो ठीक है, जो आपने कर नहीं सकता नहीं हुआ। ठीक है। ये कुत्ते की तरह जुबान बाहर ओ निकाल यार के अच्छा माफी मांगू नहीं या नहीं जुबान मांगू? जुबान कौन बाहर रखता है? माफी मांगू या नहीं? रखी है ना तुमने? यानी आप क्या चाह रहे हो, माफी मांगनी है, बात आगे लेके चलनी, नहीं क्या कर? चल मैं वीडियो ऑन करना। चल ठीक है मैं करना, मैं वीडियो ऑन करना। कल बात कर लेंगे। बात करनी है? गुड हाँ बशर चलो। होइश, हाँ। अच्छा रुको जरा, बोल अंडरवर्ल्ड जी सफा 262 खोलते खिलाफत अल्लाह में हाजिर हुआ था। अच्छा पहले 262 आपने सफा बात ये करनी है या खोलेगा। मुफ्ती साहब करेंगे? ठीक है पहले आपने खोल करनी जी। है या मुफ्ती साहब? नहीं ये सफा खोल यार किसी ये यार क्या क्या हो गया यार? पहले आपने बात करनी है, मुफ्ती साहब ने करनी है? ए जी सफा मैंने खोल लिया कर पड़ा। नहीं चलो जी। आपने करनी है बात या मुफ्ती साहब मुफ्ती ने करनी है? मुबशर ने जो झूठ बोला है ये वो सफा है। ओ भाई पहले नहीं यार, सारा जो भी सफा है। दूसरा भी मैं हवाला खोल लेता हूँ जो अच्छा, ठीक है। बैकग्राउंड है। ये है मेरे चलो, पास, इसका ये मतलब देखा है ना। 2 मिनट आपको दे दूं? ये नजर आ रहा है? नजर आ नहीं रहा मुझे है? नहीं नजर आ रहा। नहीं 2 मिनट नजर आ आपको रहा दे है? दूं? नहीं तो वो क्या तुमने वो खोपे लगाए हुए हैं? वो कैमरा ही नहीं ओपन भाई मेरे। कैमरा क्यों यार चिल्ला रहे हो, क्यों परेशान हो गए हो? अहमदियत दा तमाशा बना के रख दिता जे। ठीक है तमाशा नहीं, ये मैंने खोल लिया ना। इसको कह तो मुबशर खुल को गया। आ सामने। अच्छा, इसको दो कह आप पढ़े, ये खुद ही 2 पढ़ेगा। मिनट आपके 2 मिनट उनके, ठीक है? नहीं पहले तू माफी मांगता है कि नहीं? चलो कोई पहला फैसला कर ले। उधर से ना, ये तो मैंने फैसला कैमरा खोला है। करना- बात में करने के लिए मैदान में खड़ा हूं ना। खड़ा हूं मैं मैदान फैसला में इधर। कर लो कि पहले कौन सी मैं बात तो करनी है। मैं तो कोई आलम भी नहीं हूँ तुम्हारी तरह। मैं ओ यार, इस तरह कोई तो दमचुका मैं भी नहीं कौन सा लगाया आलिम हुआ। हो गया, मैं तो कमाल सीधा हो सीधा गया। एक आम अहमदी मुसलमान हूँ। आम अहमदी ठीक का है? ये हाल है तो ये मुरब्बी जी का क्यों मुफ्ती होएगा? मुबशर साहब इनसे के बात करानी है। इसको कहो जी करे आना कैमरा। और मुझसे ये बात मैंने खोल करनी- लिया है पूरे चलो हवाले ठीक के साथ। कोई एक लफ्ज भी नहीं, लोग भी देखेंगे। अल्ले जी चूंकि इस बंदे ये अपना सेन माइंड में ही नहीं है, बुखलाया हुआ है, इसलिए उसको नहीं पता ही नहीं चल बुखलाया रहा कि क्या? बात शुरू ये कैसे देख करनी ये है। देख मैंने ये शुरू उसको किया। समझ ही नहीं आ रही कि टाइम लगा के बात करेंगे, लिहाजा मैं उसका टाइम लगाने लगा हूं, टाइमर लगाने लगा हूं। 2 मिनट ये बात करेगा, जब ये 2 मिनट बात कर लेगा उसके बाद मुफ्ती साहब बात करेंगे। मंजूर नहीं है? बात नहीं, मैंने सवाल पूछना इससे और तू पहले माफी मांग कि नेक्स्ट टाइम इस तरह नहीं करेगा। अच्छा अगर तू करेगा तो या मैं ऐसे करता हूं, तू मुफ्ती दूसरी जगह साहब को पे आएगा पहले तो 2 मैं मिनट तुम्हारे साथ ये करूंगा। पहले मुफ्ती साहब को 2 मिनट दे देता हूं, फिर तो उसके यार बाद मैं तुमसे बात- मुनाजरा नहीं हूं, मुफ्ती से मैं कर ले तो बात। उसके लिए मैंने कैमरा तेरे लिए नहीं किया। तो बस ठीक है। अच्छा ऐसे करते हैं मुफ्ती साहब, 2 मिनट आपके, ठीक है जी? जी, मुफ्ती साहब 2 मिनट मैं- आपके मेरे हैं। पास भी स्टाफ वाच है, मैं बस खुद टाइम हैंडल कर लूंगा नहीं नहीं इंशाल्लाह। स्टॉप आउट तो भाई, छोड़ो। मैं तो तुम्हारे से तो मैं मेरा सवाल टाइम पूछता शुरू हूँ। हो गया। मैं पूछता हूँ ना बीच में सवाल, बोलोगे, तुम टाइम को छोड़ो। भाई मैं माइक आपका म्यूट कर रहा हूँ, मेरे पास भी अथॉरिटी है, मेरा टाइम शुरू हो गया। बस 2 मिनट जब मुकम्मल हो जाएंगे मैं खुद आपको कहूंगा कि भाई मेरा टाइम मुकम्मल हो गया। जी हमारा क्लेम ये है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने जब जमात अहमदिया का आगाज किया था तो सबसे पहला जो फर्द था जमात अहमदिया का वो चूड़ा था जिसका नाम नूर मोहम्मद था। और उस चूड़े ने फिर अपनी फैमिली के और चूड़ों को भी मिर्जा कादियानी का मुरीद बनाया अच्छा था। ये ना भाई, ये बार बार मेरा वही टाइम मैंने दोबारा सुना है, शुरू सबने सुना है मेरा ये। टाइम दोबारा शुरू हुआ नहीं मेरा मैं असूल ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। नहीं नहीं म्यूट क्यों? 2 मिनट म्यूट मुझे क्यों पूरे चाहिए, भाई? बारी लगी है। पूरे 2 मिनट नहीं 2 साथ में तो मैंने सवाल इससे पूछना है। यार साथ या तो साथ। तू टाइम ले लेना। चल 1 मिनट भाई, चलो भाई टाइम शुरू करें। चले भाई आप इसको बोल दे लें, दें। आप 2 मिनट इनको दे दें जी जी। बोले, आप बोले। यानी क्या ये टाइम शुरू हो गया लाडलों की आपका, फौज बोले। तैयार हो गई है ना, बात करते हैं ना करने देते हैं ना, कुछ बोले सलीका ना मैं कुछ। तस्वीर आपकी बड़ी कर रहा हूँ, तस्वीर आपकी मेरे पास ऑप्शन नहीं शो हो रही। पता नहीं शाह जी किस तस्वीर तरह इनकी होने बड़ी करें भाई और टाइम भी शुरू करें इनका। बोलें
ये देखें, अब करें इनकी, अब देखें हो जाएगी बड़ी। नहीं, अभी भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा चलो भाई भाई, 2 माइक मिनट ओपन करे ना चले, ਉਂਝ ਹੀ ਬੋਲ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। म्यूट करके तो कहते हैं बोल लो तुसी। चलो अच्छा, टाइम शुरू हो गया। जमात जी जमात अहमदिया की जो पहली बैत थी जब कब हुई थी ये बताओ। पहला सवाल इन्होंने तहकीक किया जी, मुबशिर साहब ने, ये जवाब देंगे। और किधर हुई थी और कितने लोग थे बताओ, ये पहला सवाल है जी। बशर अब बोल आगे से, मैं सवाल पूछा है, बोल आगे से। आपका टाइम चल रहा है, जल्दी बोलें। तो टाइम क्या, मैं सवाल पूछा है जी बस इसने झूठ भाई, बोला है। माइक म्यूट कर लेना भाई आप मुझे। ओके। ठीक ठीक, चले मैं अब टाइम अपना शुरू कर लूं। मुझे पूरे 2 मिनट चाहिए होंगे, ठीक है? ये तरीका कर रहा है, आपने टाइम खुद छोड़ा है। अगर आप टाइम छोड़ेंगे तो देखे वो फिर नहीं, बीच सवाल- में यार गलत गल है, माइक नहीं, म्यूट यार, माइक जवाब देना है। जो सवाल मैंने पूछा ना एग्जैक्टली उसका इनको पहले अगला जवाब टाइम दो, आगे दे दें, अगला स्टेप टाइम बाय आप- स्टेप आगे चलेंगे, बोल ले 1 by 1। बोल ठीक है, चलो जी बताओ, जो मैंने पहले सवाल किया आप उसका ऐसे जवाब करें दो जी। अंडरवर्ल्ड साहब, आप अपने सवालात जो है ना नंबर 1 नंबर 2 सारे सवाल दे दें, एक ही बारी में जवाब दे देंगे। जी पहला सवाल सिंपल पूछा है कि जमात की बुनियाद कब और कहां और कितने लोगों ने बैत की थी, ये मुझे ठीक बताओ होगा, पहले। ठीक है। पहला सवाल आपका आ गया, जमात जी की जी बुनियाद। जी हाँ 1 2 हम बात कर रहे हैं यार, कोई टाइम की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, टाइम की जरूरत है। आप एक बदतमीज, आप एक बदतमीज आदमी है, आप सही से नहीं, बात आप भी नहीं बहुत हो, आप भी बहुत हो, आप मेरे से 100 गुना ज्यादा हो। चले वो आपकी मर्जी है, आप मुझे अपने से बेहतर समझते हैं। मसला ये कहने का है कि भाई देखें, अगर आप टाइमली से नहीं, बात मैं तो करते आम हो इंसान हूँ, ये तुम आलम हो, किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हो मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैं मिर्जा साहब की इतनी जुबान आपको घटिया- सुनाऊंगा तो आप परेशान होंगे, नहीं उसको छोड़ते हैं। नहीं, जो जुबान, इसीलिए तो वो पेशेंट को ही थी ना, मैं उस तरफ जा नहीं रहा, इसलिए वो पहले सवाल ठीक है, वो जवाब पेश मुझे गोई मुझसे आप पर पूरी कर आ रहे गई कि आप मिर्जा साहब ठीक की है। किताबें मानते नहीं हैं। अब छोड़ नहीं, मैं सारी मानता हूँ, मैंने खोली है, मैंने ये किताबें मेरे सामने खोली है। देखें तुम पूरी कहते हो मैंने दुनिया खुद के खोली अंदर- है, पूरी मैं दुनिया आगे के भी अंदर मैं इसने मॉडरेट झूठ करा रहा हूँ, बोला है, आपका इसने टाइम जो जा हवाला रहा है, पेश किया वो आपका टाइम जा रहा मैं है। झूठ इसका साबित करूंगा। आपका टाइम जा रहा है। टाइम की बात ही नहीं है। अच्छा बशर जी, बशर, अच्छा पहले सवाल का जी जवाब दो जी, सिंपल, जो जितना मैंने सादा सवाल किया उतना माइक जवाब म्यूट दो। करेगा तो बोलांगा, तू बोली जा मैं रहा है, भी- जब आप बोलोगे मैं नहीं बोल रहा। तेरी बंद ही नहीं हुंदी पई। ठीक है चलो जी, बोलो, जवाब दो। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। नहीं नहीं 2 मिनट नहीं, सिंपल मुझे ਉਹ ਬੰਦੇ मैंने ਦਾ सवाल ਬੱਚਾ पूछा ਬਣ है। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜ਼ਰਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? यार देखो, सादा सवाल किया है, यार, गुस्सा ना मेरा करो, की मसला ये है गुस्से यार? में आ गया यार, गुस्सा ना करो, मैंने बड़े प्यार से सवाल किया है। मैं माइक आमर म्यूट साहब करने मेरी लगा बात भाई, सुने, मैं मेरी माइक बात म्यूट सुने, करने लगा। आमर साहब मेरी बात सुने, मैंने कोई गलत बात गलत बात तू है, इस तू तेरी पैदाइश ही नहीं, गलत है। नहीं तेरी मैं मानना सुता था भैन चो। तेरी पैदाइश उते आ, उते किधर चला गया है? उते आ, तेरी पैदाइश ही गलत है। तू मैनू पूछ रहे हैं? अच्छा मैनू इंज पूछ रहे हैं जी मैं दी जंतरी कड्डी है हैं? आ मेरा साहब बताएं, मैंने कोई गलत बात की है? तू पैदा ही पुठा होया सा, जिस तरह मिर्जा साहब पुठे हुए सन। उते आ जा वापस, जल्दी आ जा, उते आ जा जी। कितने गए हैं? नस गए हैं मिर्जा साहब मिर्जा साहब पूछे हसदा जे, हसदा जे अंडरवर्ल्ड, वो भी हसदा पिया जे। अच्छा आहो ਇਹ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੰਮਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੰਨਤ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। नहीं तुम्हारी पैदाइश कहाँ से, कैसे नहीं मिर्जे ने खुद किया नहीं, है, नबियों- सारे जो खोला नबी- मिर्जे दी नबी- किताबां, जितने भी अंबिया खोला पैदा होते हैं मिर्जे दी दुनिया में किताबां, तू तो बोलना नहीं देता पिया सानू। पुੱਤਰ ਬਨ, ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। यार और कादियानी हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है कोई? वो कोई उसूलों के मुताबिक बात नहीं कर सकते तुम हैं? और यार अपने टाइम पे जितनी मर्जी गालियां देना यार, की मसला है यार? और सानू भी तो 2 मिनट बोलन दियो यार। यार अंडरवर्ल्ड नो ना दोबारा एक बारी टाइम दियो, हो सकता है। नहीं शाह जी, वो अपनी असलियत ते आ गया, मिर्जा कादियानी दी औकात ते आ गया। हाँ मिर्जा कादियानी जनाब लिखदा है, लो हवाला दे देने है ना, कोई कहे कि भाई सानू हवाला नहीं सी दिता। रूहानी खज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 482 तरियाकुल कुलूब देते मिर्जा कादियानी कहता है कि वो अपने बाप का आखिरी फर्जंद होगा और उसके साथ एक लड़की पैदा होगी जो उससे पहले निकलेगी और वो उसके बाद निकलेगा। उसका सर
उस दुख्तर बाजी के पैरों से चड्डों के अंदर फंसा हुआ होगा। यानी दुख्तर मामूली तरीके से पैदा होगी, पहले सर निकलेगा फिर पैर, और उस पैरों के बाद बिला तवक्कुफ उस पिसर का, मिर्ज़े कादियानी का सर सिर निकलेगा। जैसा कि मेरी वलादत और मेरी तमाम हमशीरा की इस तरह से ज़हूर में आई। ए जे दूजा वाला रूहानी खज़ैन जिल्द 15 सफ़ा 479 तरियाकुल कुलूब। मेरे साथ एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम जन्नत था, और पहले वो लड़की पेट में से निकली थी और बाद इसके मैं निकला था, और मेरे बाद मेरे वालिदैन के घर में कोई लड़की या लड़का पैदा नहीं हुआ था, और मैं उनके लिए खातमुल औलाद था। ऐ सुन लिया जी। मैंने भाई जिस तरह शाह जी जिस तरह ये हुआ था उसके बाद जगह ही नहीं बची थी, जो होना किसने था वो सारा ते तबाह कर आया खेत। तेरी गल मेनू बड़ी कमाल लगी था यार, कमाल हो गया। देखो मैंने शाह जी मैंने इनको पहले कहा हुआ है हमारे साथ छेड़खानी करनी है तो मैंने हिसाब मिर्जा साहब से पूरा करना है, मैं बता दूं। मिर्जा भी छेड़ता है। हाँ मैंने पूछ यार, रहा कमाल हो गई। है नहीं देखिए इज्जत आपको दी है, सलीके तरीके से बारी बारी से बात करें, आप इस तरह ना करें यार, गलत बात है। देखो मुझे देख लो भाई, दो कादियानी आए जे ते मिर्जे नू ओ चूड़ा साबित कर गए जे, चूड़ियां दा लीडर साबित कर गए जे, कोई जवाब नहीं किसी कादियानी कोल। वेख लो साबित हो गया अज, फिर ना कहियो पूरा पूरा मौका दिता गया कादियानियों तुहानू, पूरा पूरा मौका। हाँ हुण भी किसी को हिम्मत है ते आजो सानू ऐसे मौजू दे उत्ते गल कर लो, आजो आजो। किताबां तुहाडियां किताबां किन्नियां ने पईयां कि मिर्जा कादियानी चूड़ियां दा लीडर सी, और मिर्जा कादियानी चूड़ियां दा लीडर सी, और जमाते अहमदिया चूड़ियां दी जमात है। हेलो ए पई जे जमाते अहमदिया। तौबा तौबा तौबा। देखें तस्लीम भाई का तो जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ना, उनको तो आप एक यकीन का एक वोट दे सकते हैं उनको, मगर ये जो शख्स आया था इसने तो बकायदा स्क्रीन ओपन करके किताब खोले दा मतलब है पूरे दिन दस इनू पता सी कि काम पै रहा है। तो इसको चाहिए था, क्योंकि तस्लीम ने तो भाई ने हमारे हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा भाई मुझे पता ही नहीं है, मगर ये बंदा आया था ये कह रहा था मैं फलां कर दूंगा फलां कर दूंगा फलां कर दूंगा। अच्छा उन्होंने पता नहीं चल रहा कि जी किताब तुसी दस रहे हो किताब किहदी है, उन्होंने ये नहीं पता। ये नवा आ गया दसन वास्ते अहमदियत की तारीख के पहली बैत कदों हुई सी। ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਹਾਂ बिल्कुल। देखें हम ये बात करते हैं कि भाई आपने हमें गाली निकालनी है, आप भाई शौक से निकालो। यार आमिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਸੂ ਜ਼ਰਾ ਕਿਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ, ਚੁੱਕੋ ਕਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਠਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ठीक है ना। हाँ तो वो मुनासिब नहीं। देखें एक चीज़ मैं समझा दूं, पहले जो बात समझने की है उसूली तौर पर, वो ये है कि हमारी तरफ से पहल नहीं होगी। एक तो मैंने उसूल ये अपना पल्ले बांधा हुआ है, हम पहल नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने जिसको पल्ले बांधा हुआ वो ये है कि यार जब ये उसूल तय हो जाएगा ना कि एक बंदा टाइम लग गया है तो यार फिर उसको टाइम मिलेगा। अगर शाह जी ने खामोशी से बात सुनी है तो शाह जी का हक है कि उनको फिर खामोशी से सुना जाए। अगर जो है ना सामने वाला खामोशी से बात सुन रहा है तो फिर मैं शाह जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि शाह जी बिल्कुल रिलैक्स। और मुझे पता है शाह जी के लिए ये उसूल, शाह जी का तो ये सबसे पसंदीदा उसूल ही ये है, वो कहते हैं यार बारी ला के गल करो जड़ी करनी बराबरी सतह, ताकि पब्लिक को पता तो चले चल की रहा है। ये आके पानी में मदानी डालने की कोशिश कर रहा है। मजाल है उसको मैं समझा रहा हूं, मजाल है उसको मैं समझा रहा हूं, नहीं वो बात नहीं मान रहा।
बात ही नहीं मान रहा. उसको कह रहा हूं कि यार तुझे अगर कॉन्फिडेंस है कि तू बात का जवाब दे सकता है तो यार तू अपनी बारी में बात कर ले, क्या हो गया? थर्ड क्लास किस्म का लिचड़ डिबेटर तू बन के आ गया थे ना. तू किसी ਨੂੰ ਗੱਲ जी मैं सवाल पूछांगा भाई तू अपनी लिस्ट दे दे जो तेरे सवाल हैं, जो तूने तोप निकाले वो सवाल पेश कर दे, उसके जवाब मुफ्ती साहब से ले लेंगे. कोई तरीकाकार तो नहीं है ना यार. अंडरवर्ल्ड बात करना चाह रहे हो, अगर माजरत करते हो, माफी मांगते हो नीचे, तो मुफ्ती साहब से तुम्हारी बात करवा देता हूं. अगर तुम माजरत और माफी नहीं मांगते तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरा भाई बात करने का. हमें आपकी जरूरत नहीं है बात अपनी पहुंचाने के लिए. चल फिर चलता बन यार, जान छोड़. खैर बहरहाल जी, सम अप करते शाह जी, बड़ी उम्दा गुफ्तगू रही. बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यकीन करें मैं घंटे डेढ़ के अंदर ख़त्म करने वाला था शाह जी, मगर ये है कि बात चलती रही, फिर आप आए, एंट्री हुई आपकी, तो ये 4 घंटे से ऊपर 13 मिनट की बात चल पड़ी. मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने स्टेज को खाली किया सिर्फ इस उसूल को कायम रखने के लिए कि यार हमें बराए मेहरबानी दानियाल भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दीगर भाइयों से भी, कि यार जब एक होस्ट है वो हैंडल करने लगा है तो आप उसको करने दो. अगर कोई स्पीकर को मॉडरेटर हैंडल करने लगा है आप उसको करने दो यार. जब आप माइक खोलते हो, उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हो, उससे डिसिप्लिन खराब होता है, तासुर कुछ और जाता है. अच्छा यार एक मिनट जी आंदा पे कौन सा तुमने दूसरी बराड़ पर नहीं आना. ओए कल ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਮੇ ਰੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐ ਕੌਣ ਸਾ ਬਰਾੜ पे नहीं आना. ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ. ਚੱਲ ਆਮਰ. हाँ बिल्कुल हैं जी. ले जी दानियाल भाई, आप उस्मान भाई, आप यूसुफी भाई, आप भी प्लीज़ कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं. ये जो हुआ है और मुफ्ती साहब ने जो तहकीक पेश की है उसके नतीजे में मुझे अफसोस है. मैं तो चाह रहा था कि शायद मुफ्ती साहब की तहकीक का कोई बड़ा तगड़ा किस्म का रेफुटेशन आएगा, ये आके कहेंगे कि जी फलां जगह पर लिखा है मिर्ज़ा साहब मुगल बरलास थे, फलां ये था फलां. इन्होंने तो साह भी नहीं लिया यार, हिलजुल भी नहीं की थी जी. अच्छा, पहली बात तो मामर भाई मैं माजरत करना चाहूँगा कि एक मिनट भाई, मैं ना जॉब पे हूँ तो मुझे पे टाइम लग जाना. कहता उस्ताद मोहतरम वो ना मौलाना अशरफी साहब की एक किताब है मिक्यासी नबूवत किताब है, वो पढ़िएगा. उसमें भी ना वो चूड़ा के हवाले से ना उन्होंने सारी काफी तहकीक जमा की है और हिंदुओं के साथ इसका जो ताल्लुक था ना वो सारा जमा किया है उन्होंने. मेरे ख्याल से वो जिन 2 या जिन 3 में होगा. तो मैं सिर्फ यही बताने के लिए आया था, मैं अभी जॉब पे हूँ. हाँ मिक्यासे नबूवत है, खोल ली है मेरे कोल सामने पई है ते जबरदस्त ओ ना मैं भिन्न मैं देखो ना तुसा मैं तो क्या सी आमिर ने मैं क्या सी ना मैं क्या किताबां पढ़ी है तो बड़ा कुछ निकलना है. अल्लाह दियो बंदियो ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੇ. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੰਨਾ ਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਇਹ ਮਿਕਿਆਸੇ ਨਬੂਵਤ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੰਨਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਅੱਛਾ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਮਾਨ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੈਡਿੰਗ उस्मान थोड़ा इसमें है हिंदुओं से ताल्लुक है ना. अच्छा हिंदुओं सारा उन्होंने इकट्ठा किया. अच्छा वहाँ पे इनका ना चूड़ों का भी जिक्र है. अच्छा चल ठीक है, मैं विनना इंशाल्लाह विनना. जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त. चले अच्छा ये जाफी आमिर भाई मैं किताब का जी आमिर भाई मैं माजरत करना चाहूँगा कि जो अभी हुआ वो बंदा आपके साथ बदतमीजी कर रहा था, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ. अरे कोई नहीं यार दानियाल भाई आपको पता है हम आदी हैं इस चीज़ के, ये बच्चे बुचुंगड़े हैं, ठीक है. इन्होंने हमारी गुदगुदी भी नहीं करते ये सारी बातें करके, इनको नहीं पता. रोज का नाश्ता है हमारा ये. हाँ तो इसलिए टेंशन ही लेनी यार. ये कौन सा अल्लाह माफ़ करे. देखे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो बंदा डिबेट के या इस्लामोफोब्स के मुकाबले में मैदान के अंदर उतरता है ना, वो मेंटली प्रिपेयर होकर उतरता है ना. उसको पता है कि उसको गाली भी सुननी पड़ेगी, उसकी माँ बहन को भी बुरा भला बोला जाएगा. तो हम तो मेंटली प्रिपेयर है, कोई मसला नहीं. बोलने दो इनको जो बोलते हैं, कोई मसला नहीं है. मुझे बस ये होता है कि अगर आज ये लोग इनकी ये जरूरत है ना कि आज हमारे ब्रॉड पे आके ये लोग ये करे तो कल को ये लोग गुस्ताखियों पे भी उतर आएंगे. करते हैं गुस्ताखियाँ करते हैं. देखो हम जो चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं ना, वो असल चीज़ ये है कि हम ब्लास्फेमी अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल. वो तो चक्कर ही कोई नहीं. उस चक्कर में वो हमारे पास एक आया
कादियानी आकर कहता है जी मैंने मिर्ज़ा साहब के आपके सामने मिर्ज़ा साहब पे दरूद पढ़ना है। मैंने कहा यार जब मिर्ज़ा साहब कहकर या मिर्ज़ा जी कहकर बात होती रही है मिर्ज़ा साहब के ज़माने में भी, असम्बलियों के अंदर भी, मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है, तो क्या दिक्कत है? उसने आगे से मुझे पता है क्या कहा? मुझे कहता है जी अगर आपका किसी हिंदू से, किसी ईसाई से, किसी मुल्हिद से डिबेट हो जाए और वो कहे जी कि मेरे सामने तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ना, तब डिबेट करनी है। मैंने कहा मैं ऐसी डिबेट को बूट की नोक पर रखता हूँ, हम बात ही नहीं करेंगे। मेरी डेस्परेशन क्यों है? मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक लम्हे के लिए दरूद पढ़ने के लिए दुनिया व मा फीहा की सारी दौलत को बूट की नोक पर रखता हूँ। क्या बात? दुनिया व मा फीहा की शोहरत और दौलत को, जहां मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपना अकीदा ना पेश कर सकूं। तुम अपने नसीब का खाओ मर्ज़इयो, अपने नसीब का भुगतो। तुम्हारे बड़ों ने जो करतूत किए उसके बाद भुगतो, हमारा क्या लेना देना। तो आगे हमें मत सिखाओ कि जी अगर किसी ईसाई ने कर दिया तो फलाना। हमारी कोई डेस्परेशन नहीं है, हम अपना मुकदमा अपनी जगह पर बैठ कर रख सकते हैं और अल्लाह के फजल से वहां बैठ के तुम तक पहुंचाएंगे। दौड़ ला लो जी, नहीं लानी जे, तुम नहीं तो तुम्हारी नस्लों तक बात पहुंचेगी। हमें कोई जरूरत नहीं है जो आके हमारे सामने रखे, ठीक है ना। हाँ चलो इसी बहाने हमसे कुछ सीख लो, इसी बहाने तुम्हारे में भी थोड़ी मिर्जा साहब को लेके गैरत आ जाएगी। बिल्कुल। हाँ अच्छा, मैं फिर ये कहता हूं दूसरी चीज, हमारे सामने दरूद पढ़ना है ना मिर्जा साहब पे, चलो ये भी मंजूर है, मगर पहले साबित करना होगा कि मिर्जा अपनी सीरत, अपने किरदार, अपने इन मामलात के हवाले से वो इसका मुस्तहिक था। उसकी नबूवत की सदाकत के ऊपर हमारे साथ बात कर लो बस। फिर तुम नहीं पढ़ो, फिर हम भी पढ़ेंगे, फिर हम भी दरूद पढ़ देंगे, और क्या चाहिए, ठीक है। ये चक्कर है, ठीक है जी। तो दानियल भाई आपका पॉइंट आया, आप यूसुफ ठीक है, कुछ और कहना चाह रहे हो आप? जी आमिर भाई बहुत शुक्रिया। बस आखिरी पॉइंट में कहूँगा कि एक टाइम था आपके यूट्यूब पे हम एज ए कॉलर रहते थे, आज आपके साथ ब्रॉड शेयर करने का मौका मिला है भाई यार। ये इसका क्रेडिट भी कादियानियों को जाता है। हाँ क्या करें। हाँ क्या इनको क्रेडिट जाता है। अगर ये टिकटॉक पर आकर ना छुपते तो हमें इनके पीछे ना आना पड़ता। इनको ये था कि यहाँ आकर कुछ बात कर जाएंगे तो बात बन जाएगी, मगर अब ये है कि हम इनको कहते हैं। आज मैं गया हूँ, वो हुसैनी साहब की ब्रॉड है, उस पर मैं गया हूँ 5-6 मुरब्बी। मैंने कहा यार 2 मिनट यार, तू गल कर ले, तू गल कर ले, तू गल कर ले। मजाल है को कोई सामने आता हो और आकर कहे मैं बात करता हूँ। कोई एक नहीं आया और कोई गाली गलोच नहीं। टाइमर लगा के भाई 2 मिनट तुम्हारे, 2 मिनट में गाली नहीं करते, बात ही नहीं करनी। तो फिर ये बड़कबाजी बंद कर दो ना कि जमाते अहमदिया बड़ी तरक्की, बड़ा इनकलाबी, बड़ी इलाही सोच, लाजवाब कर देगी, फलाना कर देगी, की फायदा। ये सारी हकीकत है। आमिर भाई मैं बताता हूँ क्यों नहीं बात कर सके, मैं बताता हूँ क्यों नहीं बात कर सके, क्योंकि उनके बकौल वहां पर एक में रख नहीं 100 में रख बैठे हुए थे, क्योंकि 1 और 100 में 2 सिफरों का एक फर्क है। ओ हो अल्लाह खैर करे। तो ये मामला है। बाकी बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर माजरत उन दोस्तों से जिनको स्टेज से उतारना पड़ा, उसके पीछे रीज़न थी एक डेकोरम को मेंटेन करना। अदरवाइज आपकी ब्रॉड है भाई, आप ही हैं, ठीक है। मिलके ही टीम वर्क है, किसी अकेले का कोई ये काम नहीं है, ये टीम वर्क है तमाम मुसलमानों का, मुत्तफ़िका मुत्तहिदा, और एक मजमूई ये काम है। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। यूसुफ भाई आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़ आप ऐड कर सकते हैं। यार ये ज़हीर अहमद साहब मुझे नज़र आ रहे हैं। ज़हीर अहमद साहब कदों तुसी कमेंटां चों बाहर निकलना है यार, हाँ निकल आओ, बात कर लिया करो। यूसुफ साहब कैसे हैं सर? ज़हीर अहमद साहब ने ना लिबास तो बाद होना, इन्होंने दूसरी गल फड़ लीती है कि अदालत च पेश हो जाओ सारे कुरान पाक दी तफसीरां लैके, ते ਉਹ शुक्र है चलो लिबास तो अगां ते वधे ने थोड़ा जिहा। बहरहाल मैं ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਸੀ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੀਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਵਾਲਾਜਾਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰਜ਼ੀਲੀ ਜਾਂ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੀ ਜਾਂ ਮੁਜੱਦਦ ਜਾਂ ਖਲੀਫਾ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹਿਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਔਰ ਖਲੀਫਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕੀਤੀ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਾਲਮੀਕੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਸ਼ੀਰੁদ্দিন ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ज़बरदस्त हो गया। इसमें सर मैन ऑफ द मैच आज की ब्रॉड के जो रहे इंफॉर्मेशन टॉपिक के वाले से वो मुफ्ती मोशा शाह साहब हैं माशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने एक बड़े नए रंग में, नए ढंग में, नई तरंग में और एक नई उमंग में इस मौजू को उठाया, और मैं समझता हूँ कि बड़ी अरक्रेज़ी के साथ हवाला जात ओरिजिनल स्कैन्स उन्होंने अपना कैमरा ओपन करके दिखाए, जिसकी दलीलों की मजबूती की ताब न लाते हुए जमात अहमदिया के जो एक फ़र्द आए थे अंडरवर्ल्ड, उन्होंने माँ बहन की नंगी गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। गुस्से में इस कदर तिलमिला उठे और इस कदर झुलमिला उठे कि करीब था कि वो स्क्रीन से निकल कर कत्लो गारत और खून खराबे का मामला करते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने हमें महफूज रखा इस जमात अहमदिया के इस टेररिस्ट से और इस दहशतगर्द से कि हम अपने अपने घरों में महफूज बैठे हैं। वरना आपने सुना वो कह रहा था कि मैं तुम लोगों का कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे हत्थे ना चढ़ जाना। तो जमात अहमदिया इस वक्त एक दहशतगर्द कार्रवाइयों की तरफ गामजन है, और कुछ हो सकता है किसी टाइम भी कुछ ऐसा मामला कर दिया जाए जिससे ये तासुर दिया जाए कि जनाब देखें हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, हमारे साथ बड़े मामला तो हो गए, लिहाजा उसका नतीजा ये निकल आया कि जनाब हम ओवरसीज़ ही बेहतर हैं। तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ जी इस चीज़ के ऊपर। खैर दोस्तों, इरादा तो था कि घंटे डेढ़ घंटे के अंदर इस सेशन को सम अप कर देंगे, क्योंकि मैं रिव्यू करना चाह रहा था उस सारी बैठक को जो हुसैनी साहब की गुफ्तगू उनकी मौजूदगी में हुई थी, और उसमें जो हमने बात की थी। मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे अहबाब हैं जो अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं फिलफौर, उनको हम ले लेते हैं एक एक बार। मैं देख रहा था ताकि बात को ख़त्म करें। तो मैं चाह रहा हूँ कि जिन लोग इंतज़ार कर रहे थे या मौजूद थे उनके साथ ज़्यादती ना हो, तो हम बात को सम अप कर देंगे जी। राहिब भाई, फिर लाला मुर्तज़ा भाई और बाबर भाई, फिर हम इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर देंगे। ये आखिरी हमारे कुछ कॉलर्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी राहिब भाई। यार भाई ठीक है, ये सब ठीक है जी जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जमात अहमदिया के बारे की थोड़ा ख्याल है? भाई आपकी आवाज़ कम आ रही है। राहिब भाई बात कर रहे हैं ये? जी जी जी, मैं कहा थोड़ा जमात अहमदिया के बारे की ख्याल है? जमात अहमदिया के बारे में क्या ख्याल है? जी ख्याल बड़े ख़तरनाक हैं जी दलील की रोशनी में। और ख्याल ये है कि ख्याल ये है कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है जी जी कि दुनिया की तारीख में चंद बड़े धोखों में से, अगर चंद बड़े धोखों में से एक बड़ा धोखा अगर काउंट किया जाए तो वो जमात अहमदिया होगा जो आम इंसानों के साथ हुआ है। अच्छा जी भाई, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, क्योंकि इनकी एक जनता बड़ी तादाद में समझती है कि वो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है आपके साथ, यानी पूरी की पूरी नस्लों को हाईजैक कर लेना ये छोटा काम नहीं है। अच्छा, जो हमारे मुसलमान खुद इनके पास चले जाते हैं उनका क्या होता है? अच्छा, जो खुद चले जाते हैं? हाँ, जो खुद चले जाते हैं, जो खुद इनसे पैसे लेके मुसलमानों के ऊपर भी जुल्म करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो गलत है। देखें जुल्म करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो गलत है। देखें राहिब भाई, ये सबसे पहले आपने कहा जमात अहमदिया के बारे में क्या ख्याल है, वो मैंने बताया। तो साथ ही आपने कहा उनके बारे में क्या है। तो आप क्या जानना चाह रहे हैं, किन किन के बारे में जानना चाह रहे हैं? मैं हाँ, इनका जो मरकज है ना वो हमारे गांव के साथ ही है। नहीं वो तो देखें ये तीसरी बेतुकी बात हो गई आपकी राहिब भाई, जो असल मुझे समझ नहीं आई। आप जमात अहमदिया के बारे में मेरी राय जानना चाह रहे थे, या मुसलमानों के बारे में राय जानना चाह रहे थे, या अपने गाँव के बारे में बताना चाह रहे थे?
नहीं बस भाई क्योंकि कुछ ये तो तीन होता है अलग ना, ही बस चीजें वो हैं। कहना तो होता है, इस तरह हाँ जो जी, करते नहीं लोग कहते हैं, जिस तरह जिस क्या तरह आप किधर लोग से कहते हैं? हैं ना ये बुरे नहीं है। मैं चनाब नगर रब्बा से हूँ, मैं अहले तशी हूँ। चिनाब नगर रबवा से हैं आप? जी कौन से मोहल्ले से? मैं खुद अहले तशी हूँ। मैंने मोहल्ला पूछा है। मैं मोहल्ला दारुल यमन से। अच्छा, दारुल यमन से। कितने साल हैं? पैदाइशी यानी पैदाइशी तौर पर वहां से हैं, शिफ्ट हुए हैं बाद में? नहीं, हम रहते उधर हैं, हम अहले तशी हैं। नहीं, मैंने पूछा है शुरू से ही उधर रह रहे हैं आप? हम शुरू से उधर रह रहे हैं, शुरू से। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा राहिब भाई, वो आप लोगों की जगह के ऊपर कोई कादियानियों ने कब्जा किया था, उसका मामला क्या है, कोई पता है आपको? नहीं भाईजान, उन्होंने हुकूमत से 100 साल का ठेका एक लिया हुआ था, नहीं, वो खत्म हो गया था। शिया की जमीन थी वहां पर। मैं कल परसों गया था रबुए, तो वो मुझे दोस्त विजिट करवा रहे थे, तो वो जी वो जहाँ पे आपका अलम नहीं लगा हुआ बड़ा सा मार्केट है, जो वो आप वो जगह निवाज तो नहीं शाह की मुझे मार्केट है, वो निवाज शाह की मार्केट है। हाँ, वो मिले हुए बड़ा सा उधर अलम भी जिया- लगा हुआ है, अलम लगा हुआ है ना, तो उसके साथ जो जगह थी उस पे कादियानियों ने हाँ, कब्जा वो कर लिया था। फिकी ने हैं? नहीं, कब्जा नहीं किया है, जो जमीन को बेच देते हैं। हाँ नहीं, शिया की जमीन थी, बहुत बड़ी जमीन, उसके ऊपर कादियानियों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी कब्जा छुड़वा लिया हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है उसके बारे नहीं भाई, में? कब्जा नहीं भाई, वो उन्होंने खुद बेच दी है। कब्जा किन्होंने? नहीं किया, वो सेल किया। वो जो किन्होंने बेच दी है? उन्होंने सेल किया। किन्होंने बेच दी है? वो जो हमारे उधर इलाके के बंदे हैं, उन्होंने बेच दी थी। नहीं, आपको कुछ नहीं पता, आप झूठ बोल रहे। अच्छा ठीक है, चलें, खैर ठीक हो गया, शाह जी की तरफ से आ गया पॉइंट। राय भाई बहुत शुक्रिया यार, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, कोई मसला। थैंक यू राय भाई, सलामत रहें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ठीक है, ओके जी। लें जी, बात आगे बढ़ाने लगे हैं। लाला मुर्तज़ा भाई आप बात कर लें, फिर जाहिद भाई भी आए माशाल्लाह। जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। मुफ्ती साहब आप कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह शुक्र। जाहिद मियाँ जी जी बिल्कुल एंड की जानिब हम बढ़ रहे हैं। लाला मुर्तज़ा जी आप बात कर लें। लाला जी, चलें ठीक हो गया। लाला जी मेरे ख्याल से अवे हो गए दोस्तों, हमारे पास से किस्सा मुख्तसर हुआ। जाहिद भाई आप सुन रहे थे, आज आपने डिबेट सुनी या मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनी, उस पर सर को फीडबैक हो जाए। नहीं आमिर भाई, मेरे पास अर्ली मॉर्निंग है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, देख रहा था मैं। अच्छा, वो अंडरवर्ल्ड साहब अच्छा जो है जाहिद, वो ओ देखी है तू रबुए जाके अम्मा जान चौक देखी कि नहीं? अच्छा जी वेख्या, लेकिन काफी अरसा पहले तो वेख्या। अच्छा, ਉਹ ਅम्ਮਾ ਜਾਨ ਚੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं मैंने पता लगा शाह जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਧਾਰੀ परसों गया ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਪਰਸੋਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਚਾਰ ਧਾਰੀ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਰ ਧਾਰੀ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਧੋਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੈ। वाह, सही सही, निशानी पक्की कर छड़ी शाह जी। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਜੇ, ਇਹ ਚਲੋ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬਹਾ ਹੀ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਪੀ ਤੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਣੀ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। यानी शाह जी जमाते अहमदिया दे अफराद करने का मतलब है ਵੱਡੀ ਕਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ। हेलो जी, सुनो, रबुआ का दारू ज़ियाफ़त है, और अब आपको देखें अभी अम्मा जान चौक आने लगा है, जहाँ पे नच्छो बेगम चार धारी धोती पहन के पान मुंह में डाल के वो बैठती थी,
اور یہ ہے وہ جناب چوک آنے لگا ہے. ہاتھ پہ نا آپ کے سرائے مسرور ہے. یہ سرائے مسرور ہے اور اس کے آگے جا کے یہ جناب چوک آ گیا جناب. نچو بیگم جو کہ جناب حکیم نورے کی لونڈی تھی. رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ وہ بنا ہوا ہے, یہ ہے چوک جناب. کیا نام ہے اس کا, ایک منٹ یہ چوک آ گیا. چوک کر لیں پھر اس کے بعد. یہ دیکھیں اس کو 4 دھاری ادھر نشان بھی لگایا ہوا ہے. یہ دیکھیں پتھر کا نشان دیکھ رہے ہیں, پتھر. اوہو, یہ تو بڑا ریلو تخلیقی, بڑے تخلیقی انجینئر نے جی. ہاں نہیں اے ویکھو 4 دھاری جنج دھوتی پاندی سی, وہ دھوتی دا نشان بھی دتا رہے. جی چیک والی دھوتی. جی شاہ جی صحیح پڑھیا. میں کوئی اپنے کو گل نہیں کر رہا. شاہ جی بڑی تواڈی باریک بین تے عقابی نظر جے. ہاں جی بڑا نقطہ پڑھیا شاہ جی, بڑا نقطہ پڑھیا جی. ہاں جی واہ واہ. لے جی, چناب نگر کی دوستوں اوورسیز میں جو قادیانی حضرات بیٹھے تھے, آپ کو دیکھیں مفتی صاحب نے لائیو وہاں پر ولاگ کر کے دکھا دیا اور آپ کو دکھایا جناب وہاں کی صورتحال کے اپڈیٹ چل رہی ہیں. تواڈے چندے دے پیسے نال توتی سٹائل جڑا چوک بن رہا ہے, تواڈے چندے دا ویکھو کس طرح بہترین تخلیقی استعمال ہو رہا ہے جی. تعمیری کام ہو رہے ہیں جی. تو لے جی, اسی چیز کے ساتھ شاہ جی کچھ آپ کے اختتامی کلمات ہیں تو پلیز عرض کریں. اور پھر اس وہ جڑی تصویر جاری کیتی گئی ہے نا, وہ تصویر بھی دوستاں نو ایک کری وہا دتی جائے تاکہ اے قمیض بھی ویکھ لو او 4 دھاری, اے ہوئی نشان دھوتی دا بھی ہوندا سی تے قمیض دا بھی اما جان دا. تے ٹھیک ہے جی, چلو. ہاں ٹھیک. ہاں نہیں بٹ ڈیٹیلنگ ہے جی. لے جی دوستو, غلطی کوتاہی معاف. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ حسب موقع جب ملا کرے, مہینے میں, ہفتے میں, 2 ہفتے میں, جب موقع ملے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک ٹاپک جو ہے میں انشاءاللہ اس کو رکھنے لگا ہوں, جس کو میں اینڈ میں دکھا دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ ٹاپک جو ہے دوستو بڑا اپنی نوعیت کا ادبھت ٹاپک ہوگا. بعثت ثانی کا عقیدہ, فضیلت کی پہیلی. آپ نے سنا ہوگا کہ جماعت احمدیہ قادیانیہ کا ایک بڑا کفریہ اور بڑا گستاخانہ عقیدہ ہے, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی, ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے جو آئے تھے وہ محمد عربی تھے, اور دوسری بار جنہوں نے آنا تھا وہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا. اس موضوع کے اوپر جیسے ہی مجھے موقع ملا, میں ایک کوئز سٹائل کے اندر ایک پوسٹ کے تھرو پروگرام کروں گا, اور ہم MCQ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. بعثت ثانی کا عقیدہ, فضیلت کی عقلی پہیلی ہم رکھیں گے, اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جماعت احمدیہ بعثت ثانی کے عقیدے کے حوالے سے کیا ان جو ہے وہ تفصیلی تحقیقی فضیلت کے ایشو کو حل کر پاتی ہے. اور میں میک شور کرتا ہوں کہ یہ موضوع کئی عام احمدیوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے اور کئی عام احمدیوں کے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اور کئی عام احمدی مرد اور خواتین کی غیرت کو جگانے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا. آپ انتظار کیجئے بفضلہ تعالی. جیسے موقع ملا انشاءاللہ اس موضوع کو رکھیں گے. ھذا ما عندنا وما علینا الا البلاغ وما اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت شکریہ تمام احباب کا. زاہد بھائی کا بھی اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام.